Guys, I would like to thank Irfan Bhai, Mr. Irfan Bhai, all the way from US, to address you guys on this topic. Money, wealth, and unfulfilled relationships. So, I would like to thank him for giving the time from his busy schedule. So, let's welcome him. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. So before I proceed, I just wanted to get a survey and try to understand like what the audience is like, because I can go to this level and try to communicate. How many of you are working right now? Okay. And should I consider the rest of them like pursuing something or like business or studying? Okay. So English or Urdu, दोनों में जो है ना to make it more complicated. Okay. So money, wealth, entrepreneurship, right? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत कम लोग जो है ना टच करते हैं. तो मनी अभी भी बात होती है, नेगेटिव कॉनोटेशन से बात होती है. जरूरत सबकी रहती है, मगर कोई इसके बारे में इसकी वैल्यू क्या है और फिर क्यों मतलब इसको परस्यू करना चाहिए, इसके बारे में कोई डिटेल बताता नहीं. So what is money? Money is like a commodity to exchange value. And what is wealth? Wealth is not just the money, but it's all about you. Wealth comes in different aspects. You have health, you have relationships, you have network, you have money. So money provides you options. Money provides you options so that you can pursue different things. It doesn't give you happiness, but it tells you that, okay, you can go in that direction. And next day, if you want to sit at home, it gives you the luxury, okay? So before we get into the topic, this is cool. So mindset. So for anything you do, you have to first build a mindset, okay? So what is the current mindset in our society at our current level? Let's go and take a look at it. So this is the typical 9 to 5. I mean, when I say 9 to 5, it's like a regular कोई job करते हैं, right? जो psychology का रहती है, सुबह गए शाम आ गए, right? कोई ऐसा हो जाए, घर आ जाए, टीवी देख लिए, मतलब चाय वाय पी लिए, पकौड़े खा लिए. एक common जिंदगी ऐसे गुजरती. Nothing bad with it, nothing wrong with it, okay? So एक थॉट प्रोसेस है जो आपको आपके जो ब्रेन की जो वायरिंग है ना, उससे आपको पहले अनवायर करना पड़ता है, उसकी अनवायरिंग होनी पड़ती. तब तक जो है आप इसको परस्यू नहीं कर पाएंगे. इसका रीजन मैं बताता हूँ. तो ये थोड़े से कॉनोटेशन है कि पीपल जो है ना ऐसे बोलेंगे, व्हाई कांट आई लिव अ नॉर्मल लाइफ इस टाइम. तो सोशल मीडिया देखूं, टीवी देखूं, दोस्त है, बाप है, पार्टी पे जाऊं, राइट? आई एम नॉट हर्टिंग अदर्स, राइट? एंड व्हाई शुड आई वरी अबाउट अदर्स? फेयर इनफ, यू कैन लिव अ लाइफ. खाओ पियो आराम से, किसी को तकलीफ मत दे. मगर उसका फिर ये मत बोलो कि सिरातल एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन. इनामात वाली जिंदगी परस्यू मत करो. खुदा से कंप्लेन मत करो कि जो हमें वो इनामात दे जो शोहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, नबियों को दे. Those are very, very significant leadership roles and requires a lot of patience and perseverance. तो आप दुनिया को अगर एडमिनिस्ट्रेट करना चाह रहे हो इस जमाने में, then you need the skills. You need the skills to run this world. And that's not going to happen with a 9 to 5 job, 9 to 5 thinking, right? If you want to stay like that, that's fine. There's nothing wrong with it, right? If you want to excel in something else, then you have to do something different. You cannot be in the crowd. You have to be out of the crowd, okay? There's another one. Don't be greedy after growth, promotions, money. अक्सर ये आता, लोग बोलते हैं, मेरे को भी यही हुआ था कि भाई जो चल रहा है जॉब चलाओ ना, क्या मसला है, प्रमोशन नहीं हो रहा, मतलब अरे हिरिस मत करो, ग्रीडी मत हो, राइट? मस्जिदों में आपको यही बताएंगे, हिरिस मत, हिरिस अच्छी चीज नहीं है. प्रमोशन के लिए अगर मैं जो है ना 50,000 कमा रहा हूँ, कि मैं कोशिश अगर कर रहा हूँ 70 कमा लूँ या लाख कमा लूँ, तो लेकिन हिरिस मत करो यार, मतलब जितना मैं उसमें खा के खुश रहो, सुकून से रहो, राइट? फाइन विद इट, नथिंग रॉन्ग विद इट, दैट्स फाइन एज वेल. मगर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप.
राइट। अगर फुटबॉल में अगर जाके आप बोल रहे हैं कि जो ना मेरे को टॉप नॉच प्लेयर बनना है, तो यू हैव टू लर्न द रूल्स, यू हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड द गेम, you have to then only you can go and actually play with the rules. So be content with what you have and focus on ibadah and akhirah. Aksar across the board, focus on akhirah, focus on ibadah, right? आखिरा तो है अपनी जगह, मगर यहाँ क्या है, राइट? अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर सब जो है ना जाके केव्स में बैठ जाते हैं, जो गारों में बैठ जाते हैं, दिन रात इबादत करके टाइम जो है ना स्पेंड करके निकल जाते हैं, राइट? फिर वो जो भी है मेहदी ईसा जीसस के भी जो कहानियां हैं, जो भी लिखे हुए वही आके कर ले, अल्लाह अपने बंदों को भेज ले, कुछ भी कर ले। तो खुदा ने आज तक कौम की हालत नहीं बनी नो, जिसको खुद अपनी हालत बनने का तैयार, राइट? तो ये दुनिया इज इररिलेवेंट, आखिरा इज एवरीथिंग, दुनिया मीन्स अ लॉट ऑफ हिसाब किताब, ये भी आप सुनेंगे अक्सर। दुनिया परसू ही नहीं करना चाहिए, क्यों? तो हिसाब किताब होगा, राइट? अगर ज्यादा आपके पास ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा पैसे आ गए, ज्यादा पावर आ गया, तो फिर हिसाब किताब भी वैसे होगा। तो बेहतर क्या है, करो ही मत कुछ और, उसको एक्वायर ही मत करो, राइट? तो फिर हिसाब किताब भी नहीं होगा। ये भी आपको जो ना लोग बोलने वाले नहीं। और वो लोग बोलेंगे कि आई वांट टू बिकम रिच बट आई वांट टू सेव मनी। आई टेल यू विद 100% श्योर, यू विल नेवर बिकम रिच बाय सेविंग मनी, because the system is designed in such a way savers will never be able to become rich. और बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज, ये ऐसी फील्ड है जिसमें मतलब आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी अक्रॉस द बोर्ड, ये बताते हुए कि ये इसमें हराम है, ऐसा है, मतलब जो है ना चीजें आएंगी। कुछ लोगों में ये रहेगा कि आई हेट पॉलिटिक्स इन कॉर्पोरेट बोर्ड, मतलब जॉब में जब परस्यू करने के लिए हायर रोल पे जाते हैं, पॉलिटिक्स रहती, खींचमतानी रहती, लोग टांग पकड़ के खींचते हैं, पीछे जो है ना मतलब लोग बातें करते हैं, तो बोलते हैं आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट, आई जस्ट वांट टू गो pray 5 times in the masjid and I'm done, whatever I'm earning is fine, that's good, alhamdulillah, right? तो फिर वाइन, पोर, बहुत सारी चीजें हराम हैं। तो जॉब पर जब जाते हैं कोई भी आप, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एम्प्लॉयर के साथ, राइट? आई एम गोना पुट 8 to 10 hours productively. If you're not putting those productive hours enough, then don't you think the earning which you are getting, जो आप कमाई ले रहे हैं आप, वो हराम नहीं होती आपके लिए, राइट? तो ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो रेगुलरली अक्रॉस द बोर्ड चलता है। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ these are all these are just like BS. It has nothing to do with reality. No, कोई इसका सपोर्ट आप हदीस से, कुरान से ऐसा कोई मतलब मिलता ही नहीं। मतलब कुरान करीम जो हदीस से खुला जो ना ये है कि इंसान कंप्लीसेंट जिंदगी नहीं गुजारना। इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने जिस मर्द मोमिन की बात की थी, जिस शाहीन की बात की थी, वो सिर्फ किताबों में है ना। आपको उसको जो है अशार में खूबसूरत से बयान करने में सुने होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेके आएंगे? तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको लेकर आना है तो भाई दुनिया में काम करना पड़ेगा, दुनिया में मेहनत करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स बढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस और बैंकिंग संभालना पड़ेगा, खुद की करेंसी ओन करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जहां पे डिसीजन होते हैं कौन सी मुल्क में जंग होनी है, कौन सी मुल्क में जंग नहीं होनी है, तो वहां बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। आप वो लेवल पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जब आप वो लेवल पे गेम ही नहीं खेल रहे हैं, तब आपको पता ही नहीं है कि कहाँ ये चीजें होती है, तो फिर आप प्रोटेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। So overall, why I'm talking about this and why I'm talking about this one, money, because wherever you go, wherever the power is, money goes through it. Until you understand the path of money, you will not understand where the power lies. And the power of money is all related to trade. कारोबार से, बिजनेस से। ये अब नहीं हुआ है, ये 200 साल पहले नहीं हुआ है, ये अजल से, जमाने से, हजारों साल से ऐसे चले। जब भी कोई सल्तनत बनेगी, बड़े से बड़े ताजिर जो है से टाइड अप रहेंगे, वो मुशीर बन के रहेंगे, वो बैकबोन रहेंगे, बड़े बड़े डिसीजन में वो इन्वॉल्व रहेंगे बिहाइंड द सीन। तो इसीलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है? ये एक हदीस है, मैं पता क्या निकलता हूँ कि अक्सर उलमा कोट करते हैं कि आई एम नॉट बॉदर्ड बाय द ऑनसेट ऑफ पावर इन उम्मा। मुझे रसूल फरमाते हैं कि मुझे गुर्बत से जो है ना मतलब फिक्र नहीं है, बट इंस्टेड आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ माय उम्मा माइट गेट एंटैंगल्ड विद वर्ल्डली प्लेजर्स एंड गो
तो ये क्या बोल रहे हैं, उसमें फरमाते हैं कि मुझे फिक्र है कि मेरी उम्मत वर्ल्डली प्लेजर्स में और एक्सेसिव वेल्थ में जो है ना मतलब गुम हो जाएंगे। तो आम तासुर क्या है अपने पास, कि मैं पूछता हूँ आप लोगों से, क्या उम्मत लग्जरी में है या गुर्बत में है? सब मुतफिक है इस चीज से। किस कौम के पास ज्यादा दौलत इस जमाने में? नहीं, चंद मुसलमान खानदान के पास वर्ल्ड के रिचेस्ट रिसोर्सेज जो है चंद मुस्लिम फैमिलीज कंट्रोल करती हैं, वो आपके डेजर्ट में। मगर उसका ये तासुर जरा भी नहीं है कि इससे सारी उम्मत जो है ना मतलब वो जो लाइफ रहते हैं लग्जरी, वो उम्मत नहीं है। तो सब में गुर्बत में अगर कोई है, अगर कंपेयर करें ज्यूस को सारी कौमों को कंपेयर करें, तो लोग मुसलमान है। मतलब 98% मैं बोल सकता हूँ कि मतलब जो है ना भूखी नंगी प्यासी मतलब मोहताज, कोई अगर आके उठ के चपाट लगा दिया तो फिर जो है ना मतलब बोलने की बात करने की सलाहियत नहीं। मतलब जाके किसी और के पास ही जो है ना मतलब गिड़गिड़ाना है, भाई ये मार दिया मुझे, मतलब अपने पैरों पर ठहरने की सलाहियत नहीं है। उसका कोर रीजन जो है ये है कि अब इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आपको बताता हूँ कि सूरत तकासुर, तो लोग बोलते हैं क्या भाई दीन के बारे में कि मतलब दुनिया की मतलब दुआ नहीं करना, तो मैं ऐसी बहुत बड़ी दलील आपको हुज़ूर फरमाते हैं यहाँ हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, ये बहुत बड़े साहबी हैं। जब मक्का से मदीना हिजरत करके आया तो आपके पास कुछ भी नहीं था। तो मदीने वालों ने आधी आधी जायदाद दे दी मक्के वालों को, जो मुबल्लग थे जो आए थे वहां से, जो अंसार थे, तो उन्होंने नहीं ली। उन्होंने बोला कि मुझे मार्केट का रास्ता बताओ, अल फिक्र था। तो उन्होंने जो है ना मार्केट का रास्ता से और गए, जाके तिजारत की। फिर तिजारत करने के बाद जिससे उनको फायदा हुआ वो लेकर आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना एक मुकाम पर ठहर के फंड रेजिंग कर रहे हैं, चंदे के लिए ऐलान किया। तो आपने क्या कि उसमें से अपनी जितना भी आपने बनाया पैसा, आधा पैसा दे दिया। तो उसमें फरमाते हैं कि कितना बनाया था आपने, तो आपने रकम बताई, तो फिर आपने कितना दे रहे हैं आप, बाकी का क्या किया, मैं घर में रखा। फाइन। तो रोज़ जो है ना हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह आपकी उस हिस्से में भी बरकत दे जो आप घर में रख के आए हैं, और इस हिस्से में बरकत दे जो आप जो ताउन कर रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन है ना, मतलब जो पॉवर्टी को ग्लोरीफाई करने का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो उसको समझने की जरूरत है। पॉवर्टी से जो है ना इंसान मजबूर होता है, मोहताज होता है। वो जिस फकीरी की बात औलिया वगैरह करते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट, भिखारीपन डिफरेंट है, और जो है ना फकीरी अलग चीज है। तो इन दो चीजों को अगर आप मर्ज करेंगे आपको जो है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो दैट्स द कोर रीजन। हर कोई जो है ना मतलब पॉवर्टी को एक्सेसिवली ग्लोरीफाई करने की वजह से जो है ना आपसे कॉन्सेप्ट खराब होते हैं। तो और एक मिसाल, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी एंटरप्रेन्योर, रसूलुल्लाह पहला पहला निकाह जान आपसे करते हैं। शुरू में जो तकालीफ थी रसूलुल्लाह को, साथ किसने दिया, बेतहाशा पानी के साथ पैसा खर्च किसने किया आपके कॉज में, अपनी पूरी दौलत। हो गया। और सूरत तकासुर में तो खुल के बयान हो गया कि रश्क अलाउड है, तकासुर अलाउड नहीं। रश्क हेल्दी कंपटीशन है, तकासुर अनहेल्दी। हेल्दी कंपटीशन इन द सेंस कोई उठ के मस्जिद तामीर करे, मैं मुझे ये ख्याल आना उसको देख के कि जो ना मैं इससे और बड़ी मस्जिद तामीर, ये हेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी कंपटीशन ये है कि मैं इसकी टांग खींच दूंगा। तो ये मस्जिद बनाया तो इसके बाद जो है ना मैं इससे बेहतरीन मेरी अपनी जाती बिल्डिंग बना के दिखाऊं, ये क्या मस्जिद बनाया बस, या इससे मैं ज्यादा दौलत बता के मैं जो है ना मतलब अपनी आरोग्य दिखाऊंगा सामने लेके। तो अनहेल्दी कंपटीशन। तो इससे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आपको क्लियर हो गया कि इस्लाम कभी वेल्थ को हेट नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज दैट वेल्थ, राइट। सो एक आम इंसान की जो जरूरियात होती है ना, मतलब बिल्स होते हैं, नल के, लाइट के, अपने बच्चों के, बीवी के, जब खर्चे हो जाती हैं तो एक उसका माइंड जो है ना फ्री हो जाता है, उसके बाद कुछ सोच सकता है। अगर वही चक्कर में अगर वो फिरते रहा, पेशेक आफ्टर पेशेक, ये बिल्स पे करना है, उसकी तबीयत खराब इसी करना है,
तो वो दूसरा कैसा आगे का क्या सोचेगा, कम्युनिटी के बारे में कैसे सोचेगा, फिर बाहर निकल के पूरी उम्मा के बारे में कैसे सोचेगा, इल्म हासिल करने के बारे में। So it is really necessary, mandatory for every Muslim to get out of that spiral, web spiral. Okay, you need to work hard, and you have to get out of that dependency and make yourself a free person. You don't want to be a slave to a 9 to 5 job. You don't want to be a slave. Job तुमको dictate नहीं करना चाहिए. And I'm going to teach you those. There are different avenues when you think about making money. It's not just like real estate. Every single time you think about Volga, Volta, real estate, शादी खाने, मतलब these are all comes with like लोग inherit कर लेते हैं या सियासी तौर पे या फिर जो ना muscle power से. There are a lot of avenues. You can make money. मतलब दुनिया बहुत बड़ी है. So what we are getting into is like abundance mindset. Okay. हमने वो mindset देखा 9 to 5 का, जो slavery point of view से, जो एकदम महदूद और नैरो जो ना आपको विजन बता रहा है. तो हाउ इज दिस डिफरेंट, वो क्यों है माइंडसेट, इसका रीजन ये है, वो स्केर्सिटी टाइप ऑफ माइंडसेट है. वो तस्वुर ये होता है कि हर चीज स्केर्स है दुनिया में. उस वजह से अगर कोई मेरे बाजू वाला कोई तरक्की कर रहा है तो वो एक सॉर्ट ऑफ फीलिंग आती है इंसान के अंदर, कमजोरी रहती है कि अरे यार इसको मिल गया मेरे को नहीं मिलेगा. अगर एक मिसाल है कि मेरा कोई पड़ोसी ने दुकान डाल दी चिकन की, तो उसके बाद अगर मैं डाल दिया चिकन की दुकान तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका कारोबार कौन जाएगा. मुसलमान का ईमान क्या है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है. फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि मतलब जो ना एक दूसरी दुकान खाली डालने से मतलब जो ना कैसा, तो फिर ईमान नमाज भी पढ़ लेते, राइट. सो द रियल टेस्टिंग ऑफ योर ईमान comes in the field. When you're out working, when you're delivering, when you're doing your real ibadah is work. तो आप जब कारोबार करेंगे, जब आप जाके जॉब करेंगे, तो आपके कमिटमेंट्स है, आप तो 100% कमिटमेंट और ईमानदारी से आप काम करेंगे, तो वहां आपकी ईमान की टेस्टिंग. 5 नमाजें तो 7 पढ़ने से नहीं होती, 7 से 10 पढ़ने से नहीं होती. आपका अल्लाह का ताल्लुक है, वो बनते रहेगा. आप 5 में कम कर दिया तो वो आप अल्लाह को जवाब देने वाले. It has nothing to do. So scarcity leads to insecurity, envy, jealousy, stupidity, backbiting, leg pulling, loser thoughts. मतलब कोई अपना किसी के मतलब नुकसान हो गया, राइट, मतलब दिल में खुशी होती लोगों को, बहुत सारे लोग. It's a human psychology. But why does it come with? It comes with the scarcity mindset. अब abundance में क्या है, इन्ना आता ही ना कल का होता, फसल ले रब्बे कवन है नशान का होता, राइट. तो ये सूरह नाज़िल इसीलिए हुआ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको ताने फरमाने थे कि जो ना आपकी तो नस्ल ही नहीं है. बड़े बड़े नबियां की तो इतनी बड़ी बड़ी नस्ल चल रहे थे, हाशमी, इस्माइली, फिर आपका तो मामला खत्म है, आप तो रहमतुल आलमीन है. तो ये सूरह नाज़िल हुआ वो उस चीज को एड्रेस करने के लिए. तो उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाना है कि हमने आपको कौसर अता किया. तो कौसर का एक माना होता है अबंडेंस. हमने आपको हर चीज अबंडेंटली प्रोवाइड की. अबंडेंट इन द सेंस अनलिमिटेड. इसकी मिसाल ये है कि ये रूम में इस दुनिया में मतलब जितने बच्चे हैं, अब ये इसके डबल हो गए और आगे बाजू में सांस लेने में ऑक्सीजन कुछ कम हो जाएगी क्या. हैदराबाद में 1-2 मिलियन लोग आ गए तो मतलब समंदर में पानी कम पड़ जाएगा क्या पीने के लिए, राइट. अल्लाह ताला बिला अदल दे रहा है, हवा दे रहा है, रोशनी दे रहा है, पानी दे रहा है, राइट. अबंडेंटली प्रोवाइड कर रहा है. तो कुरान करीम अल्लाह ताला सूरह कौसर में नहीं बता, हमने हर चीज आपको जो है अबंडेंट अता की. तो वेल्थ भी अल्लाह ताला ने ये बताया कि हमने ये जमीन और आसमान में भर दिए. तो वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी यही है, ये अनलिमिटेड है, ये अबंडेंट है. कोई एक बिलियनियर बनने से दूसरा बिलियनियर को कम नहीं हो जाती. कोई एक बिलियनियर 1 बिलियन की बजाय 100 बिलियन भी बना गया तो दूसरा अरे ये तो नहीं बन सकता, वो तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं. तो रिस्क जो अल्लाह ताला लिखा है, आप जैसे नियत करते हैं खिदमत की, वो रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू. अक्सर लोग सुनने होंगे अरे शादी कर लो जो है ना, मतलब औलाद होगी तो अक्सर सुनते होंगे घर बैठने से रिस्क बढ़ता क्या. उसमें विजडम ये है कि आपको औलाद होगी तो आप फिक्रमंद होंगी. Then you start thinking about how should I feed my kids? तो मैं 5 बना रहा हूँ, then I'll start to think maybe I should start to make 10, 15, 20 now.
right? So that's the wisdom in it. कि जिसके हक में जो लेकर आता है तो फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला रास्ता बना के उसके लिए इतना रिस्क देता है. Unless and until you do the hard work, it's not gonna come by sitting. अगर आ भी गया, आ भी जाता है, क्यों तो चूंटी भी जो ना बिना जो ना जॉब के जो ना जिंदगी गुजार लेंगे, राइट? उसका भी रिस्क चल रहा है, आ भी जाता है. मगर wealth without hard work will bring you a lot of problems, not just for you, for your whole generation, and it's not going to be good for you. So थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा आपको कि एम्प्लॉय माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में क्या डिफरेंस है. Once you start thinking differently, then you start to understand कि चीजें मतलब कैसी है. तो अगर आप अबंडेंस में सोचेंगे सारी चीजें, तो आपका तवक्कुल बढ़ेगा, तवक्कुल पे ईमान बढ़ेगा, और आपकी आंखें जहां पे क्राइसिस है वो क्राइसिस को देखेगी, अपॉर्चुनिटी को देखना शुरू करेंगे. कचरा पड़े हुआ है तो एक एंटरप्रेन्योर वही नजर देगा, सब बोलेंगे, गालियां देंगे, ये डांट दपट के चल जाएंगे, ये क्या कचरा है, ये क्या कचरा. दूसरा बोलेगा यार ये आई कैन मेक अ बिजनेस मॉडल आउट ऑफ इट. If I can just get like 10 rupees from each of them, I'll just clean it up. If there are 100 people in the neighborhood, महल्ले में 100 लोग हैं, सबसे मैं 10 ले लूंगा और 100 रुपए में कचरा हटा दूंगा, तो बाकी तो पैसे मैं इतनी जेब में रखूँ. तो that's how you start to see this. कि बेटरमेंट के लिए, लोगों की जिंदगी जो है ना मतलब अच्छी होने के लिए, और फिर उसके साथ जो है ना रिस्क भी ना बन गया. तो once you start thinking about others, जब आप नियत सेल्फलेसनेस की करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह विल ओपन द डोर्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. और एक बात, क्यों मैं पुश कर रहा हूं कि जो ना इस डायरेक्शन में जाओ आप. ये तिरमिजी में हदीस है, अ ट्रू सिंसियर एंड ट्रस्टवर्दी बिजनेसमैन विल बी इन द स्टेटस ऑफ अंबिया सिद्दीकीन एंड शुहदा. राइट? क्यों, उसका रीजन मैं बताऊं. और एक है, मेरी उम्मत के 10 में से 9 हिस्से रिस्क अल्लाह ताला ने तिजारत में रखा है. कितने में से? 10 में से. तो अगर आप सिर्फ जॉब परस्यू कर रहे हैं, तो यू हैव जस्ट 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी. 90% तो सबमिट कर दिया, 90% चांसेस तो खत्म ही हुई. तो अल्लाह तिजारत में रखा. तो अब 10% में जाना फाइट है. आप अब अगर नहीं मिला अच्छा तो खत्म. स्किल्स अच्छे हासिल नहीं करे तो खत्म. फिर दैट्स द रीजन. सो आई कम टू दिस, लाइक व्हाई अंबिया सिद्दीकीन एंड शुहदा का जो मामला है कि तो यहाँ है बेनिफिट्स. ये आप अबंडेंस के माइंडसेट से आप जो परस्यू करिए सारी चीजों को, तो उसके इंफरादी भी फायदे होते हैं और फिर जो ना इज्तिमाई भी फायदे. तो ये इंफरादी फायदे फॉर इंडिविजुअल, इट फोर्सेस योर रिलीजन, इनकॉर्पोरेट रिलीजन एज अ लाइफस्टाइल, नॉट मेयर एज अ प्रेयर. तो मजहब एक्चुअली प्रैक्टिकली जो ना इन्फोर्स होता है. क्यों, उसका रीजन क्या है? आप जब बड़ी बड़ी रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे तो अल्लाह का तवक्कुल लेके करेंगे. चोरी शकारी गड़बड़ा करना स्टार्ट करे वो तो डर आया ना. जब तवक्कुल से स्टार्ट करते आप, तो 10 रुपए की गड़बड़ करते किसी दूसरे दिन 10 रुपए चल जाते इधर. वो सिस्टम ही ऐसा बने हुआ अल्लाह का रूज का जो निजाम है कि जो है वो कर्मा बोलते लोग, दूसरी जो ना मतलब मतलब जो भी है, मगर अल्लाह ताला का निजाम ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली इंसान के वजूद का जो ना तज़किया होता है. इट बिल्ड्स कैरेक्टर, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर पर्सनली, shows your strength and weaknesses. अपनी आईने में जब तुम जाके ठहर के देखोगे तो एग्जैक्टली पता लगेगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ये नहीं चला, तो मैंने कितने लोगों से मतलब जो है ना वो कर लिया, मतलब ताल्लुकात खराब कर लिए, पेशेंस नहीं हैंडल कर सका. तो दैट शोज के इंसान जब तक तुम जाके मैदान में काम नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल सॉकर फील्ड है, जब तक जाके सॉकर खेलोगे नहीं, तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट कहाँ है होना है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या गोल पे है या फिर जो ना मिडिल में है या फिर एज पे है, कहाँ. Unless and until you figure out, you put yourself in those shoes, put yourself in different training, put yourself in different jobs, put yourself in different businesses, you will not be able to know what your strengths and weaknesses are. So it's really, really necessary. And makes you just Shaheen, the real Shaheen of Allama Iqbal. Yeah, qualities of Falcon I'm going to discuss later. And one of the biggest reasons, Anbiya Siddiqeen Shuhada, kyun? Yeah. You will always be in test with money, with integrity. You will have the chance to do corruption. Zyada aata, zyada jata haath se. You can just make quick money and run away, and maybe you can live a good life in Thailand or somewhere. In the short term, right?
ख्यालात आते हैं। वंस यू स्टार्ट टू ग्रो, ऑल दीज स्टेप्स विल कम। तो जब तुम्हारा ईमान कितना है तभी मालूम, जब सामने जब चीजें आती है ना, तो विच कॉन्स्टेंटली कीप्स यू बिलीव इन ईमान इन शेयर। ओके, सो दौलत एक चीज है, दौलत दिल में बिठाना नहीं है, दौलत जेब में रखनी है। इसका एक मैं वाक़या हज़रत पिरान पे अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह के मैं उससे बताता हूँ कि एक मशहूर वाक़या है। मतलब आप जो है ना बैठे हुए रहते हैं अपने शागिर्दों के साथ दर्स कुरान देते हुए, तो आप भी बहुत बड़े शागिर्द थे, तो उनकी एक शिप जो है जो सामान लेकर आने वाली रहती, तो इत्तला मिलती कि वो डूब गई। तो उनके शागिर्द आके सामने बोलते कि आपकी जो जहाज आ रहा था वो डूब गया। तो फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर थोड़ी देर के बाद दस शुरू होता, फिर उसके बाद फिर दोबारा से जो ना मतलब न्यूज आती, वो आपका नहीं था। तो फिर अब शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर दर्स होने के बाद आपके स्टूडेंट्स पूछते कि आप एक बार बोले थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो समझ में आया, फिर दूसरी बार क्या था है? तो बोलते कि मैं शिप के लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने दिल को चेक करके देख रहा था कि नुकसान हुआ तो मेरे दिल को कितना असर हुआ, कि मेरे दिल में कितना दर्द हुआ, नहीं हुआ तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हूँ। तो जब वापस से न्यूज आई कि नहीं नुकसान ही नहीं हुआ, बोलता फिर दोबारा मैंने दिल को चेक करके मेरे फल को देखा कि मतलब खुशी से, मतलब मैं पागल तो नहीं हुआ कि मतलब मेरे नुकसान नहीं हुआ मुझे, तो मेरा दिल इत्मीनान है, तो मैं इसलिए मैं शुक्र है। तो दिस इज द विजडम यू वांट टू अंडरस्टैंड कि जो है डोंट पुट मनी इन योर हार्ट, ओके, एंड it is for use, it is for, if you have money it's going to help you, your families, your kids, in your community, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, and it gives you power, okay। और थर्ड चीज कलेक्टिव बेनिफिट क्या, इज्तिमाई बेनिफिट्स क्या है, आप लोगों को जॉब दे सकते हैं अगर आप कंपनी ओन करें, आप खुद जाके जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, आप चैरिटी कर सकते हैं, बेतहाशा चैरिटी कर सकते हैं, सदका जारिया के प्रोजेक्ट कीजिए आप, सुकून से जो है हजरत अबा उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दिन आज तक हुआ है, 1400 साल दुनिया में। और डू यू नो हाउ द वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय एनी सुपर पावर? पूरी तारीख उठा के देखो आप, ट्रेड इज द बैकबोन। खिलाफत उस्मानिया ले लो, ब्रिटिश एम्पायर ले लो, सारी चीज जो ट्रेड कंट्रोल करेगा उसकी जो है ना सल्तनत आएगी, ये दिमाग में। और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम इज द हार्ट ऑफ एनी नेशन टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड पीस। इस्लाम क्या है भाई? इस्लाम अमन है, इस्लाम पीस है, न सिर्फ पीस ही नहीं है, इस्लाम पीस इसीलिए लेकर आता है, वो जस्टिस को एस्टैब्लिश करता है, सिस्टम में फेयरनेस को लेके आता है, जो एक्सप्लॉइटेशन है सिस्टम में उसको खत्म करता है, अदल को लेके आता है, अदल को नाफिज करने से अमन आता। खाली मीठे बातें जाके मतलब अमन आता बोलते, ऐसा नहीं आता अमन, आप वो निजाम लेके आते जिसकी वजह से वो निजाम से जो है अमन आता। तो इफ मुस्लिम्स डू नॉट टेक द लीडिंग रोल इन गवर्निंग दीज सिस्टम्स, then forget about leading the world। अब खाली खिलाफत के नारे, बड़े बड़े बातें, जज्बाती नारे, उससे तो कुछ भी नहीं। मैं भी बहुत मारा, मेरी भी पूरी जवानी यही गुजरी हैदराबाद में। So it doesn't make any change. Protest doesn't make a difference. I'm a difference. What makes a difference? I know. If you pursue towards this path, if you try to understand these economic and financial systems, it definitely takes you closer towards those systems, and try to understand how you can actually bring the change. Okay. Perhaps to avoid takasur, stay away from unhealthy competition, allowing wealth to process over you, becoming a slave to wealth. You should never acquire। और ये थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट, लोग अक्सर बोलते नहीं है, ये जो पैथ जो है ना सुकून की समझते हैं आसान। Once you do something hard work and struggle, right, you will not have mentors, you will see failures, you will see losses. What are you, was it, where is the help is going to come from? वो टाइम रहता है जो जाके मस्जिद में असल जो है ना मतलब रो रो के दुआ करने का, सारे कर रहे जाके नमाज करके दुआ करने का रहता। जिस वक्त आपको जरूरत है जो है ना अल्लाह ताला रज़ा बनने के लिए, क्या जब आप फंसे में रहते जो है ना, तलवार आके सर पे लटकते रहती, किसी को पैसे देना है, जबान दे दिए, मगर जो है ना मामला जो है ना खराब हो गए, आपकी नीयत अच्छी है मगर आपके पास दे नहीं सकते, तो वो वक्त रहता है जो अल्लाह ताला जो है ना असबाब बनाने के लिए जाता है, डोर्स ओपन करता है। सो नेवर गो इनटू एडिक्शंस, ओके। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डू एक्वायर वेल्थ,
but they take the help of support of addiction. किसी को ये शौक, वो शौक, ये शौक, स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता है, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकता, फेलियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी के घरों में जो है ना छुड़ी के बच्चे के साथ पालते बच्चों को, जरा सी भी तकलीफ नहीं होती, तो कभी भी फेलियर देखने की मतलब उसको बर्दाश्त ही नहीं होती। तो जैसा भी जब भी कोई छोटा मोटा भी फेलियर देख लिया तो बेचैन हुआ था, मतलब उसके बदल कुछ और गड़बड़ कर देता। So you have to balance that, okay? Okay, यहाँ तक तो बात हो गई. So far so good. Everyone is with me? Okay. What are the skills? What are the skills to acquire? Okay, let's go into that. तो ये जो है मेरे एक उस्ताद हैं, and he is the CEO of a company. And उनकी बुक में से जो ना मैंने लिया है, तो उन्होंने उनके जो जिंदगी के पूरे एक्सपीरियंस है उन्होंने अपनी किताब में डाला कि there are 3 kinds of skills, okay? Essential, success and assassin skills, okay? ये लेफ्ट पर जो essential skills है, these are typically taught colleges, courses, right? इसका eventual help क्या है? Any skill that helps you get a job, okay? मतलब कोई जाके आप कहीं से कोई ट्रेनिंग कोर्स पढ़े, यहाँ से आप लोग हासिल कर रहे हैं, right? Maybe somewhere down the road it's going to help you to find a job. This will only help you get a job, a regular job, okay? Success skills. Keeping up with essential learning in your course field. ये कोई भी नहीं बता पाया, ये खुद से करना है, मैनेज करना, speaking abilities, listening, networking, making connections, going out of the way, not just within the Muslim community, going out of the way, non-Muslims as well, presenting, reading में तो बहुत पीछे है उम्मत मुस्लिमा, कोई किताबें नहीं पढ़ते, सब ला के मतलब जो है ना मतलब स्पून फीड करने का नेचुरल। मेरा भी ऐसे हाल था, आई एम नॉट ट्राइंग टू पॉइंट आउट द फिंगर्स। उन्होंने कहा हमारा माहौल जिस तरह का बहुत बड़ा अदब का शहर था हैदराबाद, लेकिन मीर उस्मान निजाम की जो सल्तनत थी, बहुत बड़े बड़े लिखे लोग रहते थे यहाँ पे, जो बड़े बड़े नवाब भी जो होते थे, आलिम दीन से ज्यादा मतलब जो ना इल्म हासिल करके वो रुतबा जो रखते थे, कैसे किताबें लिखते थे बहादुर आजम। तो ये सब आपको सीखनी पड़ेगी। ये कैसे सीखेंगे आप? प्रैक्टिकली जब आप जाके जॉब करेंगे, जब आप प्रोग्रेस की ख्वाहिश करेंगे, तो ये बिना सीखे के आप आगे नहीं बढ़ सकते, एफर्ट नहीं डाले नहीं बढ़ सकते। तो यू नीड टू फाइंड मेंटर्स, ओके? इट्स नॉट गोना हैपन। दुआ करो, गिड़गिड़ाओ, बोले कि अल्लाह ताला मेरे लिए जो है ना मतलब मेंटर्स भेजिए कि मेरे को ये चीज नहीं आ रही, अल्लाह ताला अल्लाह बनाएगा। फिर ये वाले है assassin skill, okay? So this is where if you got these skills, you will be killer. आप कोई जाके कोई यहूदी के बाद मतलब टॉप नॉच यहूदी से भी बात कर सकते हैं, कोई हिंदू से भी बात करते हैं, बोलते क्या मतलब गैर कौम में जो आला सलाहियत रखने वाले लोग हैं उनसे भी जो है ना मतलब आप आई टू आई आप जो है ना मुकालमा कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ जाऊंगा, वो तो कम ही छोड़ दूंगा, आपने तो देख लिया है यहाँ पे। Investments, entrepreneurship, negotiations, public speaking, human psyche, नफ्सियात। नफ्सियात तो हार्डली कोई पढ़ा है, छोड़ दी होंगे सब्जेक्ट में। Understanding how world works, this is really really important. दुनिया कैसे चलती है, अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तो आप जो है अपना करियर ढूंढेंगे नहीं उसमें जाके। कोई आम सा कोई भी छोटा जॉब लेके उसमें जो है ना कंटेंट जिंदगी गुजारने का सोचेंगे, मतलब वो ड्रीम सोचने के मतलब जो उस पे नहीं है, विजन एंड बिग पिक्चर थिंकिंग। अगर आप बैठ के विजन सोचेंगे, ड्रीम करेंगे कि खिलाफत कैसे होगी इस दौर में, हम जो है अगर एक मुल्क बनाएंगे शरीयती निजाम का लेकर आकर, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल जो ना सिस्टम क्या होगा, हमारी करेंसी कैसे होगी, हम कौम को तरबियत कैसे करेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, वो लेवल पे जब आप बैठ के सोचना शुरू करेंगे तो तब प्रॉब्लम्स आएंगे, तब सवालात आएंगे, तो तब आप बोलेंगे वाकई में मतलब जो है ना हमारे पास कोई ऐसी किताबें ही नहीं है जो मतलब इसके पीछे को रिसर्च किया है, राइट? सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अल्लाह ताला आके जमीन फाड़ दे के मतलब जो है ना ऐसा नहीं दे देंगे खिलाफ, ना मेजोरिटी की यही है कि दुनिया तबाह हो जाए, सब हो जाए ताकि जो है ना हम रूल कर लें, ऐसा कुछ हो जाए। रैशनल थिंकिंग, तो ये सब हासिल करने के लिए आपको एक कॉमन थीम है, लर्निंग का एटीट्यूड रहना बहुत जरूरी है। कोई भी शोबे में हो आप, उसको एक्सेल करने की कोशिश कीजिए, खारी ही क्यों नहीं बन रहे आप। खारी मतलब शौक रहता लोगों को खारी बनने का,
So you should aim to go on the top-notch level to represent your country at the world level. Should not just settle मैं मोहल्ले में जो है ना जबरदस्त खर्च पड़ लिया तो बस नहीं. You should aim for that. तो आप जिस शोबे में हैं जब तक आप वो उस शोबे में एक्सेल नहीं करेंगे, you should not rest. बोलने का मतलब ये है. ठीक है. Let's move on from here. How can you really build wealth? And let's go much closer to the wealth area and the money area. Okay. How can you really build? Job से wealth नहीं बनती भाई, मैं बहुत बता रहा हूँ. Savings से भी नहीं बनती. उसका कोर रीजन थोड़ा सा टच करके मैं चले जाता हूँ. इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है मेजॉरिटी हमारी फॉर्म को नहीं मालूम. इन्फ्लेशन वो होता है जो महंगाई होती है हर साल में बढ़ती जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैं, आपका नाम क्या है? अशफाक साहब से मैं 100 रुपए बोरो करा 2 साल पहले. तो 100 रुपए में जो चीज आती थी 2 साल पहले, अब अशफाक ने लेके फिर मैं 100 रुपए दे दिया वापस 2 साल के बाद. अब अशफाक साहब बोल रही मैं 100 रुपए में जो चीज पहले खरीद सकता था 2 साल में, अब वो चीज नहीं आ रही भाई उसमें, वो चीज 120 में आ रही. तो ये ट्रांजैक्शन फेयर हुआ या अनफेयर हुआ? अनफेयर. कोई है भाई फेयर के ओपिनियन में? मैं जितने पैसे लिया उतने ही वापस करा लिया. चलो फेयर इनफ. Let's, yeah. From your point of view, it is fair. From his point of view, it's unfair. Absolutely. That's what I was about to come. तो ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली अनफेयर है. मेरे तरफ से फेयर है, इनके लिए से अनफेयर है. कुरान में जिस ट्रांजैक्शन के बारे में अल्लाह ताला ने बताया है प्रिंसिपल्स वाइज, वो बताया है कि जो एक्सचेंजिंग वैल्यू, so whatever I am taking from the value point of view, I should be returning that value. So since बहुत सारे हमारे learned scholars इस चीज को नहीं समझ सके, इसके ऊपर काम ज्यादा नहीं हो सका, there is a huge misunderstanding what the inflation is, what the central banking system is, what the interest rate system they have adopted, and what the Quran is talking about. So इस वजह से मुस्लिम कंट्रीज में वो निजाम को लेकर नहीं आ सके. वो ऐसा निजाम है कि अमीर अमीर ही बनता रहता और गरीब गरीब ही रहता. मतलब one of the biggest things for people to prosper in any society is access to capital. Okay? अब मेरे अशफाक भाई अगर कोई उनके जहन में कोई कारोबार है, मतलब प्रूव कर लिया उन्होंने कि मतलब ये करना है, रिसर्च कर लिया उन्होंने, तो उनको एक्सेस टू कैपिटल नहीं है. अशफाक भाई को जाके जो है ना हार्वर्ड में एमबीए करना है. He is one of the brightest student in Hyderabad, but he still cannot do it just because there is no access to capital. तो अब असर हो रहा है कि मैं लोन लेके चले जाता हूँ भाई. लोन लेने का तो अब आधे लोग बोल रहे भाई इसमें इंटरेस्ट आराम है. अब उन्होंने बोल रहे कि भाई इंटरेस्ट की आयत फौरी पढ़ के जो है ना आपको सुना देंगे जो भी है. तो अल्लाह ताला ने जंग का ऐलान कर दिया. बोल दे कि ऐसा टेक अ स्टेप बैक भाई, ये क्या है कि नहीं मालूम, जो भी है मैं यही देख लेता हूँ. समझ रहे हैं? तो दिस इज हाउ द साइकी इज अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट हियर. ये आपको पूरे मुस्लिम कंट्रीज में जो है ना इस लेवल की जो है ना, उसका कोर रीजन है टर्की में 70% इन्फ्लेशन आया एंड इकोनॉमिस्ट दे हैव नो आंसर टू दैट. तो जो मॉडर्न वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्टार्ट ही होता है डिस्कशन से कि हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, हाउ वी कंट्रोल द डिफ्लेशन. तो हमारा डिस्कशन शुरू होता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिबा एंड इंटरेस्ट रेट. तो वी नेवर टॉक अबाउट सिस्टम्स, वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट a misunderstanding, and then we end up something we are not able to create. So everyone is talking about micro. So start thinking strategically. I know not everyone will have the job to create these economic systems. सबका जॉब नहीं रहेगा. चंद मतलब लोग रहेंगे जो बैठ के सोच के मतलब उसके ऊपर जो है ना theoretical papers लिखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली इसको प्रूव करके दिखाएंगे this system works, right? But it is the job of everyone to understand and start question. If you don't question it, it is not going to help. Okay. So going back to inflation, savings. If you keep saving, if the inflation is 20%, and if you are not making 20% every year, you are actually losing money. तो कभी भी सेविंग से जाना बहुत मुश्किल है. Inheriting wealth from parents and marriage, ये तो बहुत क्लासिक कोशिश करते लोग अपना शादी आदि से कुछ हो गया.
वैल्यू क्रिएशन, हाँ अब आते हैं सर। तो भाई वेल्थ बनती किससे? 3 तरीके है भाई बताना, इससे 3 से हटके कुछ भी नहीं है। वैल्यू क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट्स, हाईली ल्यूक्रेटिव करियर्स प्लस पैसिव इन्वेस्टमेंट। लेट्स गो इनटू द डिटेल नाउ। वेल्थ वाया वैल्यू क्रिएशन, ओके। प्रोडक्ट क्रिएशन है इसमें, ये क्या है वैल्यू क्रिएशन क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल, सीधी एक बहुत बड़ी मिसाल, एक छोटी मिसाल, राइट? एप्पल आईफोन, राइट? You created a product where someone liked it, and you sold in one country, and then you started selling in all the countries, and you made a tons of money, right? कोई ऐसी चीज बनाओ जो सबको पसंद आए या उसकी यूज में आए, उसकी नीड है। तो अब उसकी एक छोटी मिसाल में इसको दिया था और उसने सक्सेसफुल भी हुआ बनाया। तो लगा भाई आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मतलब छोटे में ही नहीं करना, छोटे में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मच्छरों का इतना बड़ा मसला है, तो मतलब देखो आंख खोल के देखो क्या क्या मसले हैं लोगों को, उसको कैसा आप जो है ना सेल कर सकते। फाइंड द नीड एंड सेल इट। तो इफ यू कैन सेल 1 lakh pieces of those bats, electric bats, and have like $10 or 10 rupees each margin on it, that's enough for you to make wealth. Isn't it enough? कितने लोग हैं हैदराबाद में? 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ में से 1 लाख बोलो तो कितना है? 1% भी नहीं बन, राइट? मतलब 1% को नहीं, 0.7%, 0.5% लोगों को बेचने की बात कर रहा हूँ खाली। कितने लोग बेच सकते फिर बिजनेस आए, राइट? तो think about solving the, find the need, sell it at scale. तो मेजॉरिटी स्टार्टअप वर्ल्ड में, सिलिकॉन वैली में भी जो स्टार्टअप होते हैं ना भर भर के ये करते हैं, इनोवेशन 1-2 करते हैं, ठीक है? कॉपी 200 लोगों करते हैं, थोड़े बहुत नए फीचर्स ये ऐड कर दिए, वो ऐड कर दिए, ब्रांडिंग जो ना नहीं करती, एंड एक्सेप्टेबल, दैट्स फाइन। यू फाइन टू गिव समवन, वहां की ओपन कॉन्सेप्ट, अबंडेंस का कॉन्सेप्ट है वहां पे, इससे पास है अमेरिका में, कि कोई जो है ना तकलीफ दे नहीं होता, अरे तू कर ले रहा, मेरा कॉपी कर ले रहा तो मेरा रिस्क रुकने वाला है। यहाँ परेशानी आ जाती है अपने मुझे में। रीसेलिंग, ये अगर इसमें भी दिमाग नहीं चलता आपका, कोई भी आम इंसान की नीड क्या है समझ नहीं आता, फाइन, ट्राई टू कॉपी व्हाट एग्जिस्टिंग इज एंड ट्राई टू सेल इट एंड ट्राई टू रीसेल एट स्केल। ट्राई टू पिक दोज प्रोडक्ट्स व्हिच यू कैन सेल एट स्केल। लग्जरी आइटम से मत जाओ, हर कोई नहीं खरीदना। आम इंसान की जरूरत क्या है उसमें जो ना मतलब ढूंढते रहो। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो व्हाट यू लर्न, यू गोना लर्न नेगोशिएशन, यू गोना लर्न हाउ टू बाय थिंग्स इन होलसेल, हाउ टू सेट अप अ प्रोडक्ट। अभी बहुत सारे लोगों को जो जॉब ओरिएंटेड है उनको मैं जाके बोला, सर भाई आपका असाइनमेंट एक है, ऑनलाइन एक चीज बेचना है। तो कितनी प्रॉब्लम होती है, असाइनमेंट कर लो आप, कुछ भी एक चीज बेच के एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन दिखाओ, post it, list it, sell it, get the money, and what kind of hesitation, what kind of analysis and paralysis you went through, that gives you an understanding where you stand. Okay, that helps you. So any services scale भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग शुरू भी गए हैं। If you excel in a subject, if you excel in any knowledge, make a money out of it. बहुत सारे किस्म के कंसल्टिंग सर्विसेज हैं। Pick something where everyone has the need for it. जॉब के माइंडसेट में ऐसे सोचने में डिफरेंस ये है कि तुम्हारी पेचेक में जो है ना मतलब ब्रैकेट रहती है, जितना पेचेक आ रहा ना, 50,000 अगर बना रहे, 40,000 बना रहे, तो जाके मैनेजर को बोले भाई मेरे पास और एक बेबी हो गया, तो आप एक 10,000 बढ़ा दो अगले महीने से। बढ़ा था नहीं बढ़ा, बोला भाई तेरा भी मैं क्या कर। तो अगर आप ये स्किल्स से यंग एज से अगर सीखना शुरू करें, तो आप जो 1 लाख का बेच रहे हैं, तो वो then you start to you don't have to do anything new, right? You start to sell the same product for 2 lakhs, so that you can get more money. So these things, if you haven't done, it's going to be very difficult in the beginning, but you'll get to it. What to sell? Find the need and sell it. Mosquito killer example will be. तो वैल्यू क्रिएशन एक एस्पेक्ट है जो आप हर जगह आप सोचेंगे, देखेंगे, उस नजर से देखते रहो, आपको आइडियाज जो ना आना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अरे ये चीज बना सकते, वो चीज बना सकते। हर किस्म के कारीगर मिलते हैं। व्हाट यू नीड इज द विल, एंड यू डोंट नीड इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग। टू बी ऑनेस्ट, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले यू डोंट नीड कैपिटल। व्हाट यू नीड इज टू प्रूव दैट वर्क्स।
You have to find an idea and make sure that what you're trying to do is going to work or not. एक test होना जरूरी है. Unless and until you figure that out, don't even think about capital में. बस पैसे नहीं है, थोड़े पैसों में आप टेस्ट कर सकते बहुत सारी चीजें. मतलब 10 लोगों से आपको मिलना रहता, आपकी जो क्वेश्चन है उसको फिगर आउट करने के लिए, वो चीज को बनने के लिए, वो चीज को कौन खरीदना है, उसकी जो मार्केट एनालिसिस करनी है. So all these things will make you very, very strong. Not personally, like, I mean, you'll be able to help other people as well. Okay. Second aspect, wealth via investment in assets. Investment अगर नहीं सीखेंगे ना भैया, तो पूरी जिंदगी जो है ना, मतलब मेहनत करते रहेंगे. वॉरेन बफेट का एक बहुत मशहूर कोट है कि if you don't figure out how to earn money while sleeping, then you will be working all your life. And it is really, really important. So, investing Hyderabad में क्या है, वो तो real estate, right? होते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं, but there's a huge world out there, और सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से everyone can access it. What you need is barrier to entry कुछ भी नहीं है, कोई भी अकाउंट खोल सकता है, कुछ भी नहीं. The biggest problem is you have to learn the skill. Okay, so there's equities all across the world. You have commodities. Commodities is something like गेहूं, चावल, तेल, ये सब चीजें जो agriculture related होते हैं, और जो metals जो इंडस्ट्रियल में यूज होते हैं. बॉन्ड्स बहुत बड़ी मार्केट होती है. बॉन्ड बोलते हो, इसी में मिसाल देता हूँ, फिक्स डिपॉजिट कराए लोग यहाँ पे. फिक्स डिपॉजिट बैंक में होता नहीं, फिक्स डिपॉजिट करते कुछ आपको रिटर्न मिलता साल की, तो दैट्स कॉल्ड एज बॉन्ड्स. तो ये जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स रहते हैं, तो कभी बैंकरप्ट होने का चांस नहीं रहता. तो ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के होते हैं. तो यू कैन बाई देम एज शेयर्स, यू कैन बाई देम एंड सेल देम. वो ट्रेडेबल होते हैं, तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ ऑल द एसेट्स इज द बॉन्ड मार्केट इन द वर्ल्ड. सो इफ यू अंडरस्टैंड द बॉन्ड मार्केट, यू विल अंडरस्टैंड ऑल द एसेट्स. दुनिया में उथल पुथल जब भी होती है, देन यू विल अंडरस्टैंड क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है. फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट, ये भी बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट है. सुपर पावर्स जो बड़े होते हैं, उनकी करेंसी बड़ी स्ट्रांग रहती है, और दूसरे कंट्रीज की उन पर इफेक्ट होती है. तो और एक है, लोग बोलते पैसे पे पैसा नहीं कमाना. अगेन द सेम, मतलब प्रॉब्लम कुछ और है, मसला ही कुछ और है, सवाल ही कुछ और है. मुद्दा चूस गवा चूस बोले, तो वो वाला मसला है हमारे पास. मतलब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कुछ और ही रहता, तो हमारे पास जो कोड होते हैं वो कुछ और ही होते. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इन ट्रेडिंग ऑल दीज एसेट्स. ओके, रियल एस्टेट है, मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स है, क्रिप्टो एक नया एसेट ऐड हुआ, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे. तो दीज आर दी एसेट वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन. 10 साल, 20 साल, 30 साल के साइकिल्स होते हैं. ओके, ये एक ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, एक लार्जर ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, and then they just go on with the same trend, continuing for like next 10 to 15 years. Instead of putting your money and saving in something over there, if you are putting those in your assets, you will make up the inflation cost, as well as you'll make additional returns on it. तो वो आप जो 2 साल पहले जो पैसे दिए थे, अगर आप इन्वेस्ट करते आप एसेट्स में, तो आपको जो है ना इन्फ्लेशन से बढ़ के ही मतलब जो है ना रिटर्न आते हैं, तो आपकी वैल्यू रिटर्न में. और एक है तरीका इन्वेस्टिंग, ये बहुत वो वीसी वर्ल्ड में आता है, वेंचर कैपिटल. इन्वेस्टिंग इन इक्विटी और स्केलेबल बिजनेसेस, मतलब कोई एक नई कंपनी होती है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत बड़ी होने की, तो वो कंपनीज में अगर आप जाके अर्ली स्टेजेस में अगर आप इन्वेस्ट करें, तो देयर इज हायर चांस यू कैन मेक 1:100, 1:200, 1:1000 ऐसे रिटर्न आते हैं. इट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जॉब टू रिसर्च दोज. अगर कोई एमबीए के कोई है यहाँ पे, 1 2 3 4, हाँ 4, तो एमबीए के स्टूडेंट्स मतलब दे कैन रिलेट हाउ थिंग्स माइट. तो अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ के कंपनीज होते हैं वो. एक्टिव ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये थर्ड एस्पेक्ट है जो मैं आगे बात करूंगा. अब ये है मेजॉरिटी जॉब कौन कौन परस्यू कर रहे हैं, मतलब हु आर स्टडीइंग. ओके, तो मैं जब भी जॉब की बात करता हूं, मैं तो टेक्नोलॉजी में काम करता हूं, तो आई हाईली एम्फसाइज पीपल टू वर्क ईदर इन फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, or very specific jobs I recommend, because I have seen those jobs. I know exactly how much every one of these roles make the numbers. Okay, so if you make your goal, if you make your career in this direction,
then the scale at which you can earn money, you will not get hired in 1, 2, 5, 10, or 15 years. There's a huge growth in it. And even if you said that I'm done with the job, you can start doing consulting in all of these things. Okay? तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली ये बताता हूँ कि एमबीए करियर पाथ चॉइस करे, एचआर नहीं करना, फाइनेंस नहीं करना, फाइनेंस करना है, मार्केटिंग नहीं करना, सेल्स नहीं करना. अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो करो, ऐसा कुछ भी नहीं. मगर पैसे किस में मिलते हैं? Which sectors, which industries make the money out of it? These are only the two ones. No matter what, finance, हर कंपनी में जरूरत रहती है. Finance are the guys who make sure the funding is available to the company and the operations are running smoother. If they're not able to do that, किसी को कोई सैलरी नहीं मिलती. तो फाइनेंस बहुत बड़ा रोल अदा करता. बदकिस्मती ये है कि हमारे पास हर चीज रिवाज से एसोसिएट कर दी है, उसकी वजह से लोगों को बोले कि यहाँ काम नहीं करना, वहां काम नहीं करना. And that ended up, if you go in the finance world, you'll see hardly any Muslims. And you know who is on the top in the finance world? Who is managing money? The Jews. What you said is, okay, bank is haram, interest is haram, so what are we going to do? We'll take our wealth and we'll give it to Jews. You guys do the haram stuff and give it back to us. And now you have oil, you have natural resources, and they have all your money. And whenever you say, if you want to take a stand towards Palestine, we'll just turn off the SWIFT code. SWIFT code use होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए. मतलब अकाउंट्स कैंसिल हुआ थे, फ्रीज हुआ थे, एक इशारा कर दिए तो आप ऑयल की दौलत आपकी सब जो वेस्ट में रखी हुई है ऑटोमेटिकली जो है खत्म, जीरो हो जाती है. So you don't have systems. You don't have your own systems. That's the biggest tragedy. Okay, you don't have a currency. You, as a home, we are heavily dependent on West because they created the systems, and we are using the system. Unless and until we figure it out, the strategic point of view, हमारी life strategic तरीके से बदलनी चाहिए, larger vision सोचना चाहिए. Bandage adjustments, मेरे को यहाँ दिखा मैं पत्थर हटा के बाजू से निकल जाऊंगा, नहीं, पत्थर आया क्यों यहाँ पे, सवाल ये होना है. तो हम जो है ना कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं बना कि पत्थर आई नहीं यहाँ पे. इस तरीके से मतलब जो है आपको सोच बदलनी पड़ेगी. तो एमबीए के करियर पाथ देखते, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी. सिंस एमबीए के लोग थोड़े कम है तो मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, बता रहे तुम फिर भी मैं जाके कि ये सारे, ये जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये लोग बैंक्स में रहते हैं. इनका जॉब जो है फंडिंग प्रोवाइड करना रहता, नई नई डील्स बनाना रहता कंपनीज के लिए. मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए ये बड़े बड़े टॉप 4 मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स हैं, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, पीडब्ल्यूसी है. तो बड़ी बड़ी कंपनीज में होता क्या है कि इवन दो दे हैव द एम्प्लॉइज, दे स्टिल स्ट्रगल विद सॉल्विंग द बिगेस्ट बिजनेस प्रॉब्लम्स. तो वो क्या करते हैं, ये बड़े बड़े कंसल्टिंग फर्म्स को जाके बोलते हैं कि एक 10-12 मैनेजमेंट कंसल्टेंट दे दो हमको ताकि हम अपना बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करें. तो फिर वो आते हैं, देते हैं. तो उनका ठीक ठाक ये सारे जॉब में मतलब सिर्फ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील होती, ट्रांजैक्शन जो होते हैं मिलियंस में. सो यू गेट अ सैलरी एंड देन यू गेट अ कमीशन आउट ऑफ इट. सो दैट इज सिग्निफिकेंट. इवन इन इंडिया अगर कोई यहाँ पे मतलब मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर रहा है अडानी के लिए, अंबानी के कंपनीज के लिए, he will be like, I mean, easily into crores. So percentage commission on the transaction and then you have a salary bill. Venture capital होता है क्या है, वो तो स्टार्टअप होते हैं ना, छोटे छोटे कंपनीज होते हैं. तो मैं बिलियनियर हूँ तो मुझे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, तो आई एम गोना गिव इट टू वेंचर कैपिटल फंड्स. तो मेरे पैसे लेके बोलेगा कि इवेल्युएट करके बताएगा कि कौन से स्टार्टअप में कितना रिस्क है, कहाँ पे कितने पैसे डालना है. तो स्टार्टअप अगर कोई सक्सेसफुल होना है तो उसका सक्सेस रेट 0.05 रहता. 99.9 और 99.5%, 99% ऑफ द स्टार्टअप फेल. इट्स जस्ट हाउ इट इज. मगर अगर लग गया तो सिग्निफिकेंटली मतलब रिटर्न्स याद रहते, 1:500, 1:200, सिग्निफिकेंटली मतलब जो है ना रिटर्न्स जो है ना इसके हिसाब से ज्यादा. प्राइवेट इक्विटी, आप जो है ना आपके पास पैसे हैं और यू जस्ट गोइंग एंड बाइंग द कंपनीज. लाइक बाहर कोई अगर दुकानें हैं, मतलब मैं एक प्राइवेट इक्विटी फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जाके एक फंड क्रिएट किया, मैं जाके बोला कि जो है
ये किराना स्टोर है, ये खरीद लूंगा मैं। फिर मौजमजा मार्केट पे किराना स्टोर है, मैं वो खरीद लूंगा। तो इसी तरीके के रियल एस्टेट के प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं, हेल्थ केयर के होते हैं, रिटेल के होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लोगों की दौलत आप जो है ना ये स्टॉक मार्केट में जो है ना इन्वेस्ट करते हैं। अब इफ यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर देन ऑल योर शेयर, जितनी अरब की वेल्थ है, आप मतलब उनके पास कोई $1 बिलियन है, तो आप तरीके से आप जो है ना उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया में, इंडोनेशिया में थोड़े, यहाँ पे थोड़े, तो उसके रिटर्न जो है ना आपका एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि एक फी चार्ज करते हैं आप 3% या 2%। तो $1 बिलियन पर 2% अगर चार्ज करें आप, कुछ इजीली इजीली $20 million, यू हैवंट इवन स्टार्टेड मेकिंग मनी, वो सिर्फ जो है ना मैनेजमेंट फी है आप, और फिर जो भी रिटर्न आएंगे उसके ऊपर फिर आप जो है ना आपका 20% रिटर्न आपका रहेगा, 80% जो है ना इसके पैसे मैनेज करेंगे। तो these are the worlds where you should be putting your hands into, where the money is flowing, where the money is flowing a lot. तुमको पैसे कमाना है, अगर तुम समंदर में जाके अगर हाथ डाले तो कैसा आता पानी? छोटे मोटे गड़े में या नाले में डाले तो कहां से आता? आता ही नहीं तो कहां से? तो बोलने का मतलब ये है कि these are the areas where a lot of decision making, a lot of power, a lot of money resides, and these are the people who are managing these. ये लोग बैठ के जो है बड़े बड़े आपके पॉलिटिशियंस से बैठ के बात करते हैं, क्या डिसीजन होना है, नहीं होना है, किससे फायदा होगा, किससे नुकसान होगा। तो आपके पास हैदराबाद में जो है ना कुछ मामला ठीक नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस डालना है, तो जाके आप प्रोटेस्ट करेंगे तो हल होगा क्या? नहीं होता। फिर कुछ भी एक जो ना कान में सुना के भेज देते फिर आप। तो अगर आप ऐसी पोजीशन में अगर बैठे हुए रहे तो आप कमरों के बंद पीछे ही जो ना आप नेगोशिएट करो, कैसे मत करो, इससे ऐसे होगा, ऐसे नुकसान होगा, फिर मेरी दौलत नहीं आपकी भी दौलत जो है इसमें जो ना लगी हुई है, समझा सकते हैं। सेकेंड, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बोलते हैं अपने पास, आईटी बोलते लोग अक्सर, आईटी वगैरह। इसमें दो किस्म के रोल्स है, एक तो कोडिंग, नॉन कोडिंग, फेयर इनफ। तो कोडिंग वाले करियर पाथ में ये रोल्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, SRE, सिक्योरिटी, ऑप्स, ठीक है। तो इसमें कोडिंग की जरूरत है, हर कोई कोडिंग के लिए बने हुआ नहीं रहता। तो दैट डजंट मीन you can't make money. You can still make money. You can still be in the technology. These are the ones which you should pursue. मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी में होगी? जो ल्यूक्रेटिव जो सैलरीज है, जो स्टॉक ऑप्शंस है, जो स्टॉक्स है, जो बोनसेस है, जो लाखों में करोड़ों में जो पे कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी में कंपनी है। क्यों? तो उनके बिजनेस इतने बड़े होते हैं, इनके बजट बड़े होते हैं। तो उसका रीजन, कोर रीजन ये है कि मैं बोलता हूँ फैंग नाम सुने होंगे, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, these are the FANG company. You should target them. You should target them. अगर तुम्हारा गोल ही जो है कोई एपटेक कंप्यूटर्स में मैं काम कर लूं, हैदराबाद में रहा, तो फिर आगे बढ़ने का तो मसला वही खत्म होगा, राइट? अगर आपका विजन दूर तक रहा तो ये छोटे मोटे कंपनियों में तो बड़ी आसानी से मिल जाता। तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। मैं शुरू में बहुत कीड़ा था कोडिंग के, मैं बहुत सारे रोल्स में काम किया, डेवऑप्स में, सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड बैक एंड। तो बिग डेटा नया आया, मतलब फैंसी नई चीजें आया तो सीख लेता था। तो एंड देन आई गिव अप, आई सेड इट्स नॉट माय जॉब, आई डोंट थिंक आई कैन बी गुड एट कोडिंग। तो फिर मैं यही सोचा, रही मैं बोला फिर मेरा तो डेड हो गया करियर, यहाँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर मैंने यहाँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक जो है ना एक प्रोजेक्ट किया मेरी कंपनी में एज अ प्रोडक्ट ओनर। देन आई गॉट द एक्सपोजर हाउ टू वेयर अ प्रोडक्ट हैट, एंड देन सिमिलरली आई डिड अ प्रोग्राम मैनेजमेंट, TPM, technical program manager, for 6 months. I got the exposure for that. And then I said, इसके बाद भी कुछ है क्या दुनिया में? स्ट्रैटेजी, विजन, मतलब लीडरशिप रोल्स में जब होते हैं तो आपकी टीम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रन कैसे करना है, राइट? कितने लोगों को हायर करना है, कितने लोगों को फायर करना है, ऑप्टिमाइज वेज में ऑपरेशंस कैसे रन करना है, विजन लिखना है। विजन क्या मतलब, आपकी टीम को आप अगले 3 साल में क्या देख रहे हैं, तो विजन डॉक्स लिखना, गोल्स बनाना, क्वार्टरली गोल्स, ये लीडरशिप के जो है काम आता है। तो इसकी प्रोग्रेस, करियर प्रोग्रेस ऐसी होती है, मैनेजर से सीनियर, डायरेक्टर, VP, एग्जीक्यूटिव, फिर एग्जीक्यूटिव से जो है और तो कुछ है नहीं उसके बाद। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन होता है, I'll just stay here. I know a lot of the folks are from technology, a lot of the folks are about to go into the job market,
If they have any questions around it, what to pursue, where to pursue, what skills to pursue, I'll be happy to take your questions right over here. सर हम बीबीए फाइनेंस करेंगे ऑलरेडी, हम आगे एमबीए फाइनेंस करना चाह रहे यूएस में, लेकिन यूएस में ऑलरेडी हमारे रिलेटिव्स हैं, वो बोल रहे हैं कि यूएस में एमबीए फाइनेंस की वैल्यू नहीं जो है, इसके लिए करो नहीं, ये गलत है। हमारा फाइनेंस ही करना बोल के बीबीए में अच्छा करना देखो फाइनेंस नहीं, मुझे नहीं मालूम वो किस एस्पेक्ट में बोले आपको, जो भी मुस्कुरा दिए। फाइनेंस डेफिनेटली जो है ऐसा नहीं है। मैं बोला ना कि अभी भी दुनिया उसी पे चलती, तो हेवीली बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ल्यूक्रेटिव करियर है। आई वुड से गो विथ फाइनेंस। हेल्थ केयर में आप जा सकते हैं, एज अ फाइनेंस आप जो भी सीखेंगे फाइनेंस, कोई हेल्थ केयर कंपनी में ज्वाइन करने आता है, कोई मसला नहीं है। आप वहाँ पे भी ऑपरेशन जो है ना, मतलब माइनस करते हैं, वहाँ पे भी लर्निंग वंडिंग सब जो है ना आप वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मगर आप अगर हेल्थ केयर में करेंगे तो यू विल एंड अप इन अ शेल ऑफ हेल्थ केयर। आप टैग लग जाता है आपका स्पेशलाइजेशन सिर्फ हेल्थ केयर इंडस्ट्री से। So when you're getting big degrees, you have to be generic as much as possible so that you can apply in all the different sectors. You don't want to tie yourself with a specific sector right in your early careers. So your education has to be more generic. Even in software development, मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये वो टेक्नोलॉजीज नहीं पढ़ना हूँ, ये सब जितने नए नए टेक्नोलॉजीज पॉपअप होते रहते हैं, they'll stay here for few years and then that charm will go away. मतलब अमेजोन में मैं था 2 साल, क्या ऑलमोस्ट लाइक 1 साल पहले। तो जब ले ऑफ स्टार्ट हुए, तो यू नो व्हाट, वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर ऑफ पीपल whom we were laying off were, what were the roles? Artificial intelligence and data science. These were the top roles who were being laid off. तो पिछले 2-3 साल में डेटा साइंस का बहुत मतलब चल रहा था ना। तो यू कैन गेट कंसल्टिंग जॉब्स विद इट, राइट? बट टू बिल्ड अ करियर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म करियर, तो यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेसिक। एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 2 चीजों में आप जो है ना महारत हासिल करना है, वो है सिस्टम डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स। दैट्स इट। सिस्टम डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स। बड़े बड़े कंपनी में इसी में क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें कोई जाके आपको फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी नहीं पूछता, आप बैक एंड नहीं पूछता जी। SAP you have a scope, but it's very limited. Salaries भी limited रहेंगे, and you मतलब एक certain point पे reach करने के बाद आप you won't be able to do anything. मतलब you can live comfortably, you can, if you want to excel, if you want to grow, that's going to become difficult because you are very tied to SAP, and then SAP में भी modules रहते हैं, right? You will be very very specific to that. वो तो होते हैं जॉब, SAP के होते हैं, Salesforce के होते हैं, Oracle के होते हैं। तो एंड तो होता क्या है कि जब रिसेशन स्टार्ट होता है ना, तो a lot of those things जो वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल के जो लोग रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको सर्वाइव करने के लिए। तो कंपनीज will retain those employees who have very core strong fundamentals and who have a lot of contribution. So people who are very said, oh, I'm a very good React guy, I'm a very good Oracle guy. तो उसका दौर से निकल गए हैं हम। अब हाईली मैं रिकमेंड करूंगा, हमारे पास चैट जीपीटी आ गया, तो बहुत सारे जॉब जो है ना मतलब ऑटोमेट हो रहे हैं ठीक ठाक तरीके से। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। इवन माई सेल्फ टू राइट अ स्ट्रैटेजी डॉक, अ विजन डॉक, अगर चैट जीपीटी के बगैर, तो मैंने जो डॉक लिखा, विजन प्रेजेंट किया मेरे एग्जीक्यूटिव के सामने, तो आई थिंक it almost like cut my 80% of my hard work. So I collected the data, सारी नोट्स बना के बस रफ ड्राफ्ट लिखता रहा, and then I just went and said chat gpt, saying that, hey chat gpt, I'm writing let's assume you're a director of engineering in a technology company, can you take this content and write a beautiful in a persuasive tone a vision document? तो सूरज जोनस ने बना के दिया समराइज करके। तो मेरा जो हेडेक रहता था बार बार रिव्यू करना डॉक, बार बार लैंग्वेज को सीधा करना,
तो वो तो कुछ भी नहीं था। तो सिमिलरली मतलब हर जॉब में हो रहा है, मतलब रिडंडेंट टास्क ऑटोमेट हो जा रहा है बड़ी आसानी से। So keep an eye. If you fall in that category, then you will have to learn. And the biggest problem is, I'm telling to a lot of the kids these days, is world is changing. This globalization is ending. तो उसका बोलने का मतलब ये है कि 1990s के बाद से ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। माइक्रोसॉफ्ट जो 90s में जो स्टार्ट किया, तो उसने आके यहाँ पे इंडिया में 2000 के टाइम पे ऑफिसेस खोले। So globalization in the sense, these businesses, giant corporations started expanding their empires across continents and oceans. पहले ऐसा concept नहीं था। तो लोग बोले कि world एक small village है, all the countries should support this. ये almost 30 साल चल गया, but it's ending now. हर चीज नहीं चलती दुनिया में एक ही साथ। It's ending due to a lot of reasons. तो हर country अब बोल रही है कि हम nationalization की तरफ जाएंगे. Just don't want the headaches of being a global प्रॉब्लम। तो अब जिस लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट ने जॉब्स क्रिएट किए थे पिछले 10 साल में, आई डोंट थिंक इट्स गोना क्रिएट इन नेक्स्ट 10 इयर्स। टेक्नोलॉजी कंपनीज की वो स्केलेबिलिटी जो मेटा है, एप्पल है, इन लोगों के पास हर जगह पर रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, फाइन्स लग रहे हैं, चाइना में। तो ये लोग सारी मैन्युफैक्चरिंग लेकर अपनी अपनी कंट्रीज में जा रहे हैं इस टाइप का, एंड दैट रेजेस कॉस्ट, दैट रेजेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बिजनेसेस स्मूथली वेल ऑयल्ड मशीन के तरह चलते हैं ना, मतलब एक कुर्ता यहाँ से लाए, एक कुर्ता वहां से लाए, कम चीप लेबर यहाँ से लाए, तो जब एक फोन बनता है तो बेचते हैं। तो वो दौर खत्म हो रहा है। तो उस वजह से इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ लॉट ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्यूटर साइंस खत्म हो जाएगी, वो तो रहेगी। अब रोबोट्स भी रहेंगे तो हम रोबोट्स बनाते हैं, मगर जिस लार्ज स्केल पे जो मतलब सॉफ्टवेयर के जॉब निकलते थे, उस लार्ज स्केल पे अब नहीं निकलेंगे। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना है बाहर, कौन सा कोर्स करेगा? ग्रेजुएट दोबारा से बताएं बीकॉम कंप्यूटर से करेगा जी, करना चाहिए, तो कौन सा कोर्स करना? फाइनेंस। फाइनेंस। फाइनेंस उसके बाद प्रोफेशनल जॉब मिलने के चांसेस है नहीं, वही ऑब्जर्व करना। नहीं, आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप अप्लाई क्या कीजिए, आप जो है ना 3-4 यूनिवर्सिटीज ऐसे होना कि एक एवरेज रहना, एक चीपेस्ट रहना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी, तो आपके पास आगे वहां जाने का ऑप्शंस रहें कि आप स्विच करने के। और जब वीजा इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो इसका इंप्रेशन ये पड़ेगा कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड यू आर जस्ट नॉट ट्राइंग टू गो देयर टू सेटल, right? That's not your intention. Your intention is to get a really nice education over there. So that's why you're hedging your bets and you're trying to get approvals from different other colleges and universities, so that it's going to help to make your case stronger. So how much time to spend in coding career for moving to career path? There is absolutely nothing required. You can go from day one. Yeah, I had the same confusion over there. मैंने कई साल इसमें गुजार के मैं सोचता था कि मैनेजर बनने के लिए जो है ना शायद 10 साल लगेंगे। लोग बोलते भी ऐसे ही लोग मिले थे मेरे को भी, अरे अभी कैसी, मतलब अभी तो तुम स्टार्ट किए करिए, अभी से मैनेजर की ख्वाहिश कर रहेगा तुम। अच्छा, अभी तो 10 साल काम है। इट्स नथिंग, दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट में जो है, ये बोला ना कि लीडरशिप में क्या रहता, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स होना रहता, राइट? पीपल मैनेजमेंट स्किल्स एक है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स होना रहता, स्ट्रेटेजिक विजन वगैरह। तो ये पैथ के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट में यू विल बी लाइक सीईओ ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्रोडक्ट। सो इफ यू, एक पर्सनालिटी है इनकी, मतलब इफ यू लाइक टॉकिंग टू पीपल, लाइक सेटिंग अप द कॉल्स, एंगेजिंग, अलाइनमेंट, भाई ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तुमको खुद नहीं करना है, 10 लोगों से कराना है। If you are that personality, and if you're not that personality, but you're going to learn, and this is the one. प्रोग्राम मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है भाई, नई चीज कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जमाने पहले एक प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रोल रहता था, तो प्रोजेक्ट का एक मैनेजर रहता था, सब एम्प्लॉइज को हैंडल करना। तो अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, 10-12 प्रोजेक्ट्स लाके एक प्रोग्राम मैनेजर के सर पे डाल देते हैं, बोलते हैं कि ये 10 प्रोजेक्ट्स तो मैनेज करना। तो अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स बिकम अ प्रोग्राम, so that's why you have program management. Like you said, आपको कब मालूम हुआ कि you are not good with coding? Like you said, you were starting. I moved almost to staff level engineer,
And then I started, I had 2 kids, and then I wasn't able to spend time in building new technologies after that. I ended up saying that maybe I'm not good at that. And then I got a lot of rejections in Microsoft and Amazon back in 2016 For what education? for senior software engineer roles. Then बहुत इंटरव्यूज देता था मैं, मतलब ऐसे नहीं कि जॉब की जरूरत है, खाली रहे वक्त भी you just keep giving the interviews that sharpen your skills, right? Then I mean, interview after interview, I realized maybe I'm not built for that. मैं उसके लिए बने हुआ नहीं हूँ शायद. तो एक being zero बोल के हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, being zero. तो वहां से मैंने उसके थोड़ा कोचिंग भी ली थी डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए. Okay, and he trains exactly the way interviews expect, right? हम कॉलेजेस में क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स जो ना चिट्ठियां बना के पढ़ लिए कर लिए. मैं भी डेक्कन से ही पढ़ा था उस समय. आई नो एग्जैक्टली. तो स्टैक डेटे सब पढ़ लेके चले आते मतलब. हाँ, अभी तो ले ऑफ चल रहे हैं जी. ये मार्केट नहीं है. फिर मोस्टली हैदराबाद आईटी सेक्टर हो गया था. They belong for the US technologies. I don't think Hyderabad had layoffs. Instead, Hyderabad is getting more roles. नहीं, I see. मैं तो और देख रहा हूँ, मेरी कंपनी में खुद जो है हमारे पास डिस्कशन चल रहा था कि हैदराबाद में एक ऑफिस बनाए. हाँ, उसका रीजन क्या बोलते हो, यूएस में लेबर एक्सपेंसिव हो गया, यूएस में इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंटली बढ़ गया और कॉस्ट अब जो है मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया वहाँ पे. यूएस एक डाउनफॉल की तरफ है. तो नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू गो बैक लाइक दैट. थोड़ा बहुत चलते रहेगा, मगर बोलो ना, बिजनेस अपने आप को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, एक न्यू वर्ल्ड के लिए तैयार हो रहे हैं बिजनेसेस. तो द ओनली वे दे कैन ऑपरेट इन यूएस इज आउटसोर्स एंड ऑटोमेशन. तो चैट जीपीटी से सिग्निफिकेंट ऑटोमेशन कर रहे हैं हम. और सेकंड चीज, और ज्यादा हमको कॉस्ट कम करना है, दे आर लुकिंग फॉर लाइक हैदराबाद, बैंगलोर लाइक ऑप्शंस. नहीं, वो तो मतलब बात ही तो थी ना, पानी के डब्बे पे ठहर के वो होटल में बैठ के. No, elections is not the problem. Inflation is the problem. They have been trying to control the inflation since the last 2 years. So the central bank, the Federal Reserve, has struggled. तो उनका जो नॉमिनल जो इन्फ्लेशन रेट था 2% था, तो अभी 3.3 पर है, 3.2 पर है. तो उनका टारगेट है 2 पे लेके आने का. तो पता नहीं, अल्लाह को मालूम, मतलब ये लोग कभी डेटा फेक करते हैं, क्या करते हैं, मगर तो उस लेवल के जॉब फ्लरिश होना, उसके लिए तो 2% पे आना पड़ेगा. सारा कॉन्सेप्ट क्या है कि पैसा जो है, पैसा चीप मिलना, मतलब योर बोरोइंग रेट हैज टू बिकम चीपर फॉर द बिजनेसेस टू बोरो. If the money is expensive in the market to take loans, then businesses will not. Business will say, okay, we're not going to borrow more money. Instead, we'll say we can cut the cost so that on our existing loans, let's not pay more interest. Let's try to pay off. So ये सारा गेम इंटरेस्ट का है. तो यूएस पिछले 2 साल में इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली, आई थिंक 0% से 5.5% पे आए बड़ा क्विकली. तो ये इलेक्शन तो चलते रहते, पॉलिटिकल सर्कस वगैरह, मगर फेडरल रिजर्व इज द की एलिमेंट. व्हाट इट डज, मुझे नहीं लगता कि हम वापस 3% पे जाएंगे. मे बी विल बी समवेयर अराउंड लाइक 4.5%, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन. I think it will be very, very difficult. In any job for US, if you're trying to apply from here, it is going to be very difficult. The core reason is because you're not used to that work culture, work environment, work ethics, right? So that's why I recommend if people who want to go to US, I think student or हमारे कोई family में कोई है, मतलब जो ना immigrate करने के लिए, that is the easiest way. Or a student visa is the easiest one. Student visa से आप जो है जाकर जी सर. H1 पे तो बहुत है लोग, बहुत लोग जॉबलेस है वहां. हाँ, वो अगर कर रहे हैं तो fine. As long as if you have a job ready over there, that's fine. Just make sure that wherever you're going, the numbers what your employer is providing makes sense based on the location, the cost of living and stuff. Right.
Instead of blocking IT and finance, the reason why data center even for 6 months for hiring. Yeah. Okay, that's so. Future of jobs in finance. Second question is the reason why the data science and AI professionals are hired, since these are the emerging technologies. Right. I don't understand the reason why they are. Right, that's a good question. Right, I'll take the second question first. So, when big data started in 2012, right, I went to the same path, and I learned the technologies on the side while doing the work. I said I'm going to go in because hota kya hai कि these are all emerging technologies. Every company wants to experiment with it. So, हर consultant, हर trainer जो है ना पढ़ा के train करा के पैसे बनाते हैं, and they create a glut of these resources. So data science was one of the top skill what was going, and like every second person was from bachelor's from microbiology करो, bachelor's from healthcare करो, कुछ भी करो, जाके data science पढ़ के आ रहे थे university में. पढ़ के जो है ना, I got this certification in data science because maybe I don't know how the culture is over here, like bachelor's US में तो अब तकरीबन डिग्री को खत्म कर दे रहे हैं हमारे पास. Bachelor's आप क्या कर रहे हो तो it doesn't matter, masters क्या करे it doesn't matter, as long as you have those skills. तो वो शुरू हुआ कल्चर 4-5 साल पहले. And then when the layoff started, they fired these people right, left and right, saying that, okay, we don't want these skilled people, skill-based people. We want full stack people who can do whatever we ask them to do. Data has it for business development. They have traditional models. So they do not understand the reason why companies would fire data analysts for data scientists. You can credit models. ROI. It's good for a company, right? To know beforehand that particular region of this or particular market or buying this products. They can be prepared for this income, right? We have Thanksgiving, we have Black Friday, right? We have Cyber Monday. So all these things, these data points are quite essential and essential for the business growth. So why I don't come to this business. Highly paid, and then you have hired a lot of people. So when the interest rates were lower, right? How business operate, I tell you, if they are, अगर मैं Amazon का CEO हूँ, right? So if I'm able to borrow like $10 billion for like 1%, I am not gonna think where I will invest. I'll just go and just get that money first because inflation itself is 2% out there. And if the bank is giving me at 1%, I'll say that's free money. Get that money first, we'll think where to spend later. तो फिर जब सीईओ का माइंडसेट ऐसा होता है ना, तो उसके पे डाउन द लाइन मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स सारे वो लोग भी जो है ना बड़े जेनरस होते हैं कि ये प्रोजेक्ट कर लेंगे, वो प्रोजेक्ट कर लेंगे. तो जब 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 टाइटनिंग स्टार्ट होती है, जब इंटरेस्ट रेट रेट होते हैं, देन तो एग्जीक्यूटिव्स पहले आके बोलते हैं कि जो है ना हम कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेयर आर द रिडंडेंसीज, वेयर आर द एरियाज वेयर इट डज नॉट ब्रिंग वैल्यू टू द बिजनेस, वेयर आर द लाइक एक्सपेरिमेंट्स, वी डोंट वांट टू डू एक्सपेरिमेंट एनीमोर. Coming. And we know that the US market is high on inflation right now. Inflation is high in the US. So, these are the many people who are fired, who are, in the emerging technologies of AI and data science. So, if globalization is going to end. No, it is not going to end. Yeah. It is on the path. It's on decline. It's on decline. If you are getting a cheap labor over in India, for example, why would they, even as the cost is high, right? The labor cost, there is no labor law. Anybody is 50 to 50,000 for the staff, they are going. That's how the. How much? 15,000, just 15,000 rupees for a freshener who has finished full stack course, who has the skills for full stack. So that is how the market is. There are no labor laws. So in the US, how are they going to manage? They are going to hire disciplined people, and they are, planning to, reduce, outsourcing. So I want to answer on that. Stop talking. So I'll give you an answer for that. Okay. I had an org of like 47 people when I joined the company.
Okay, so and what you said next? Finance. Finance. Finance में automation हो रहा है. Significantly automation. There's a lot of things which are getting automated. So ये एक wave है. No one knows in which direction things will go. मगर एक clear data तो दिख रहा है कि corporations जिस speed से large jobs create किए थे, it is not going to happen. And Western countries, Sweden, Switzerland, US, Canada, they are discussing about having minimum wage or something like that, so that वो चीजें हों. Anyways, okay. So I think this was the one, and then the third aspect was trading investments. Maybe we'll cover it in the next session sometime later. Okay, let's try to wrap up quickly. So wealth built by trading investments, right? What you can trade in financial markets. So this is specifically people who want to pursue a career in trading, and people who wants to pursue jobs and at the same time learn the skills so that they can multiply their wealth passively. You can do actively, you can do passively. So what you can trade in financial markets? You can trade equities, you can trade exchange traded funds, you can trade indexes, you can trade bonds, commodities, currencies, mutual funds, you can trade crypto, you can trade precious metals. There's a bunch of things you can trade. And if you look at how you approach, how you try to understand the markets, is like there's a macro and a micro. Macro is something you're looking at a very, very high level, and you're trying to understand what the inflation is, what the GDP is, and then all this data is really fancy, but you can actually, if you try to understand that, you can make money out of it. And a lot of these big firms, like hedge funds and things like that, there are a lot of macro-based funds. So macro incidents takes time to shape, and macro cycles stay longer. Like, मैं आज खरीदा महीने में जाके बेचना ऐसा नहीं रहा. It takes time for that to show up, reflect. So there are typically 4 phases. Pretty much सब funds में जो उनके अंदर की किताबों में यही है. 4 phases है: Goldilocks, inflation, stagflation, deflation. हम अभी exactly जो है stagflation phase में है US के, where growth is going down and inflation is going up.
तो वेरी वेरी हॉरिबल सिचुएशन होता है कोई भी कंट्री के लिए। तो ग्रोथ अगर नीचे जा रही है तो किसी को जॉब नहीं मिलेंगे, एंड अगर इन्फ्लेशन ऊपर आ रहा है तो सब लोग अपने कॉस्ट कम करते रहेंगे। एज अ रिटेल इंडिविजुअल पर्सन आई एम गोना, मेरा बिल जो है ना ग्रोसरीज का डबल हो जाएगा, तो आई एम ट्राइंग टू स्क्वीज इन। कंपनीज भी ऐसे सोचते हैं कि अनलेस एंड अनटिल दे फिगर इट आउट व्हाट्स गोना हैपन, how the money is going to be available cheaply or expensive, we're going to do the same path. तो गोल्डिलॉक्स सिनेरियो वो होता है कि जब ग्रोथ और इन्फ्लेशन ऊपर जाती है एक साथ, वो सबके लिए मतलब प्रॉस्पेरिटी लेके आती है। और इन्फ्लेशन होता है कि जिसमें ग्रोथ भी ऊपर जाती है और इन्फ्लेशन भी ऊपर जाता है। और डिफ्लेशन होता है कि जिसमें ग्रोथ भी नीचे और इन्फ्लेशन भी नीचे। तो ये स्टैगफ्लेशन में वो कंपनी सर्वाइव करते हैं जिनके पास कुशन है, सिग्निफिकेंट मतलब कैश है। मेरे पास दुकान ओन करता हूँ मैं, समझिए कोई कौन सी दुकान करता हूँ, समझिए दूध की दुकान ओन करता हूँ, राइट। आई हैव 10 ब्रांचेस, आई हैड लाइक 100 एम्प्लॉइज, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ कैश सिटिंग इन माय बैंक अकाउंट। कि अगर कारोबार धीमा हो गया तो मैं फिर भी ऑपरेशंस मैनेज कर रहा हूँ, मेरे कोई लोन नहीं है, तो है लोन मगर थोड़े हैं। तो दीज काइंड ऑफ कंपनीज, Amazon, मेटा, बड़े जो कॉर्पोरेशन होते हैं उनका ऐसे ही चलता है बैलेंस शीट। तो दे जस्ट flourish. So I don't have the connectivity, if not I've just shown. Like if you look at all the large scalable corporations, their stock have gone like significantly crazy. So stagflation may, all you just need to be stay in Apple, stay in Microsoft, stay in Netflix, all these larger corporations, they just stay in those. You can easily double or triple your money. That was the lesson for stagflation. And it depends where the economy goes again back, and we'll evaluate, okay, which things are. So ऐसे ही जो है ना सेक्टर्स होते हैं, एवरीथिंग, हर सेक्टर बिहेव करता है अलग अलग स्टेज में, एंड देयर इज अ बिग स्टडी बिहाइंड दैट। लाइक एक क्लास लगेगी पूरी ये सिर्फ फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कस करने के लिए। आई जस्ट गो क्विकली। सो every country economy of every country goes through these phases, nothing new. So if you are a really fascinating one, you should read this one, because हर कंट्री की स्टॉक मार्केट में जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर कंट्री की स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स होता है, एक फंड होता है। देन if you feel that you're sitting in US and you feel that Indian economy is growing up, you think that India is in Goldilocks stage, then all you do is just go and buy that ETF and sit for next 6 months whenever you think the Goldilocks will be there. And if you feel like Indonesia is going in that direction, things like that. So you can become a macro investor looking into that. So you can make, and it takes time to unfold the patterns, and the patterns long for months. Another example I'll give is when the rates go right, when the rates go up, bond prices go down. They are inversely correlated. So when the rates start to top and starts to come down, then the bonds prices will go up. So if you understand these correlations, this is like free money. If you just understand the phases, understand what sectors will work on this one, you just buy and sit for like 1 year, 2 years, and it's easy. You can make money by just using this framework, but tracking the data requires long-term holding, weeks to months, macroeconomic changes as rates versus bonds, rates versus small caps, dollar versus. So अभी और एक मैं option बताऊंगा आपको. As the rates will start to come down in US, what will be the first thing to go up? All the risky small cap stocks. मतलब जो startups है जिनके पास जो है रूम है ग्रोथ होने का, मतलब Amazon है, right? Amazon is already a $1 trillion company or close. Can it double from here? It is going to be very difficult, right? 1 trillion से 1.1 trillion हो सकता, फिर 1.2 trillion हो सकता, बहुत बड़ा एफर्ट डालेंगे, तो giant. But can it become 2 trillion like next year? No, it is not going to happen. But if a company is just making 100 million and it has a market of 200 billion, so don't you think it's so easy for him just to go from 100 million to 500 million, like 4x? So all these small companies who have the scope of growth, and they just need money, right? As the money becomes cheap, these companies will flourish again back, and they just go like 2x, 3x, 4x, 5x. During COVID, let's say the federal bank was dedicated money. So there was so much money in the market that most of the jobs were being out of India. So how are they tackling the situation of because
printing the currency because the gold is low. Right? So now, it's celebrating the whole kind of situation for them. So how was the idea of that? Right. It's a big subject. It's a big subject. I mean, I'd be happy to take class. It's all about inflation and how the money flows from the systems. Why US Federal Reserve does that? It prints money. Though it's always used to print money, and US dollar is not based on code, not backed by code. So why did they print it in COVID? Because you had an event 100 साल में एक बार होता. So you closed the country and you said no one is going to work. सब बंद हो गया. तो पब्लिक को ठंडा करने के लिए बाहर आके मतलब सिविल वॉर नहीं होने के लिए उन्होंने सबको जो ना 5-5, 8-8, 10,000 डॉलर दिए. आम इंसान हो सबको. Even I got the money. So even the people on visa or tourists, everyone got the money. And then they gave a lot of money to the businesses. If you are even having a business registered with 0 employees, if you're employing, if you're saying that, oh, my business got lost, then people got 1 million, 1.5 million. So the moment US did that, what happened was the first thing to go up, the demand go up was luxury goods. सब जो ना फैंसी कार्स, गैस, मतलब जो ना ऑल ऑफ अ सडन जो ना लग्जरी जो गुड्स है ना उसका सुपर डिमांड हाई हो गया. मतलब सबके पास पैसा आ गया बेचता हाथ. So in the past, the way they used to do the printing was they used to print the money, give it to the big banks, and they used to attach some conditions to it, saying that this and this and this, only then you'll be able to lend, if not now. So only eligible businesses can borrow, eligible candidates can borrow, legit banding. तो होता क्या था, एलीट को एक्सेस होता था कैपिटल जो जेन्युइन है, तो सिस्टम में जॉब्स के जरिए, बिजनेस के जरिए घूमता था. ऐसा आप आके सबको बांट दिए, रूम में सब लोग हैं, सबको मैं 10,000 बांट दिए. सब क्या करेंगे जाके, सब बोलेंगे भाई मेरे पास पैसे, तेरे पास पैसे. सब बोलेंगे जो ना सब लोग बोलेंगे मैं जाके हीरो होंडा खरीदूंगा. राइट. तो अगर यहाँ पे जो भी डीलर है हीरो होंडा, उन्हें हार्डली 10 ले लेके बैठता हूँ जो मॉडल. सब बोले नहीं मेरे को होना, देखो ना, बोल के बोला तो प्राइस बिल्ड कर दो. तो दिस इज हाउ. सो इन्फ्लेशन की गेम जो है वो हुई, एंड दे हैंडल्ड समहाउ, and it's a big discussion, I would say, and it has a lot of learning and Islamic perspective to it. How our Turkish country, they have 70% inflation. तो राइट उन्होंने वही बहस शुरू की वहां पे कि बोलेगा ना रिबा 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 बोल के जो है वो किए, and they did not understood that what's going on in the country, and people suffered like significantly. तो अभी स्कॉलर से अगर पूछे जाके कि भाई आप अब बोलिए अब आप क्या करना, तो सोल्यूशन नहीं है. राइट. So it's another discussion. Sometimes we'll have a class for that, like the finance or from the Islamic perspective, and what are the solutions for that. ये हेजाई बोल के सर्विस है जो मैं सब्सक्राइब करे हुआ रहता हूँ. तो ये जो मैं बोला गोल्डीलॉक्स, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन, ये अलग अलग सेक्टर्स है जो एक एक क्वाड में, मतलब एक एक फेज में, जो रेड में है वो नीचे जाते, जो ग्रीन में है वो ऊपर जाते. इट जस्ट डिस्क्राइब्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. तो कभी सुनेंगे पोर्टफोलियो बैलेंसिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अब बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड रहते, दिस इज हाउ दे मैनेज. तो 5% इधर एलोकेशन, 20% इधर, 60% इधर, 50% इधर, दूसरों के पैसे ऐसे ही मैनेज करते. ओके. सो एक how many have you traded stock market over here? India, wherever? I don't know. Any other people who understand stock market? So, really? Okay, fine. This is not the audience. I'll just go on. We'll set up a separate class for that. Market में basically बोलते हैं ना कि हर चीज का एक नेचर होता है. Market का एक नेचर होता है, and that's 3 phases: bullish, bearish, and neutral. So and things go in waves. So bullish is going up, bearish is going down, neutral is just staying in the range. So the momentum burst, exhaustion, or post earning, these are like again tendencies in the market which typically exist, and you can just take advantage out of it. Repeatedly आप data देखेंगे पिछले 20 साल में तो इससे ही मिलेगा आपको. Types of trading: trend trading, momentum trading, day trading. So like day trading framework. Search for setups. Just use this. I mean, always have a 1:2 risk reward. Have a tight stop, risk entry and exit.
So I don't think if this audience will be helpful, I'll just go from here. So if someone is interested in understanding how the funds operate, so सबके जो ना एक level पे 1 million 2 million बनाने के बाद सब लोग अपने अपने family offices खोल लेते हैं. That people don't work, so they run their own accounts, and having the data in place to make the decisions is difficult for a one person. But how do you run a shop? If you want to run your own trading shop like a fund, then you can, for a macro framework, you can subscribe to Hedgeye, situational awareness, ये stock B बोल के है, और एक breadth के लिए stock charts पे मैं देखता हूँ, और for scan करने के लिए opportunities, ideas के लिए I subscribe to another service, and then brokerage account I typically use CDML. Zerodha is operating as Postman in USA, right? Zerodha is a broker kind of HCI, for example. Broker, right? No, it's not a broker. It's a risk management service. We have Zerodha, That's not. but most people use Zerodha. So it's functioning in the US as Postman. I don't know. Secret for success in trading system, 99% of the people will fail if you're into trading. That's a reality. Why? I mean, if you're into stock market, that's a common theme. People get into it. The first time they just put the money with blind eyes, make the money, and then they think that they can replicate the success again and again. But what they don't understand is it requires skills, it requires knowledge, and it has a learning curve. So if you're able to repeatedly do something, then it's a successful, right? If you're not able to do something repeatedly, it's not successful. So it's a famous quote from Bruce Lee: "I fear not the man who has practiced 10,000 kicks, 10,000 types of kicks, one. But I fear the man who has practiced one kick 10,000 times." So the secret, after being in the stock market, in the financial industry for almost like 12 years, what I've learned is, I mean, if I go back and correct my mistakes, I would have just stick to one thing for like 4 years. That's it. Instead of going here and there. Just one setup and practice with day trading. Just do that for 1 year and you'll see significant changes. So start with day trading and just master and perfect one setup, one pattern and one set. You should, because here's the calculator. I don't have the link for this one, but I would have shown you. So the risk and reward, I'll give you an example over here. Compounding takes care of the profit. You don't have to worry about the profits. Risk management is the key, because the way you approach it is, if you have $100 stock, right? You have to go with 1:2 reward. What is one? Risk. 2 is the reward. Right? If the stock is on 100, you're saying that the risk you're taking is for $1. If the stock goes to 99, I'm going to sell and go up. Okay. But if the stock goes to 102, I'm going to take the profit and go away. So if you keep doing this thing, 1:2, if you do 100 trades, and if you lose money in 50 trades, and if you make money in 50 trades, 50 batting percentage is only 50, losing percentage is 50 in it. In a year, your account will be up 67% by compounding. Okay? So if you look everything from the quantitative point of view by calculating, remove the emotions part, that's how trading is actually very boring. Trading is very boring. If you're doing it right, the trading is very boring. If you're doing with adrenaline rush, the gambling mentality, then it is going to make you like hyper mood, and there's a whole lot of psychological impacts people go through. And people wrongfully blame the stock market for that. You can do the gambling in real estate too. I'll give you a very lively example. एक करोड़ की प्रॉपर्टी, राइट? अगर आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्लिप करना है, तो आप क्या करते जाके पहले? जो प्रॉपर्टी ओनर से बात करके क्या करते? बयाना दे देते, राइट? एडवांस देते, 10 लाख दे देते, 1 करोड़ तो पे नहीं करते. फिर क्या करते? उसको बोलते कि 6 महीने का टाइम दे ले, राइट? What your assumption, what your analysis is, 6 महीने के अंदर कोई बायर मिल जाएगा 1 करोड़ से ज्यादा, राइट? अगर मेरे को कोई आगे बोला भाई तू ले ले ऐसा, तो मैं बोल रहा हूं मार्केट ऊपर जाती, तो मैं उसके बोलने से आके मैं ले लिया, 6 महीने होने आ गए, मार्केट ऊपर नहीं गई, तो क्या होने वाला है? वो 10 लाख जो थे यहाँ चले जाते. तो how much did I lost? 100% of my investment, which was 10 lakhs.
So what did I do? I did not do my due diligence. I went on the words of my friend. A table dinner, a party dinner, he said, hey, market is going to go up in like 2 quarters, 2 months. खतरनाक जारी डाल दो गच्ची बोली में जो खेत बेच दो घर बेच दो लेके जमीन ले लो. So this kind of mentality, if you approach the market, then certainly it grows. So वो रियल एस्टेट की डील करने के लिए आपको बहुत बड़े पापड़ बिलने हैं, राइट? उठो बैठो जाओ 10 लोगों से मिलो अग्रीमेंट करो, राइट? There's a whole lot to make that happen. What's in it? किसी को बिना बोले खामोशी से जाके अकाउंट खोलना, पैसे डालना अकाउंट. There is no barrier to entry. So that's what makes dangerous the market. If you think that you can access the market so easily, but it requires skills. It's not, if you approach it with gambling, then it's going to eat you away. Okay, so that's, I mean, avoid analysis paralysis, risk management is the key, take action. Yeah, that's the EX side. So if you start, let's go. If you start with the 100,000 capital, okay, and your whole intention is having 2%, MBA grads, keep an eye on it. 2%, 2% returns, 2,000, okay? After 30 days, how many trading days in a month? 21, 2021. Returns, 51%. छक्के अगर मानने के आप 40-50% आते हैं उसके भी opportunities. But what happens is you will not be able to replicate it again and again. As I told you, market goes through waves. It will never be like hyper bullish forever. It stays there a few weeks in a like momentum mode and it just goes sideways for a long time. And it just goes through corrections, up and down, up and down. So if you try to capture little by little singles and doubles, and if you continue to do it consistently, and that is the secret. And I have seen a lot of successful traders in US. That's what they do is small singles and doubles, and the compounding takes care of itself. And this is more beautiful. If you do this diligently for 12 months, 13.55%. Okay? So this is a very, very lucrative career. It is not easy, but there is an opportunity. If you can master this art, then you will gonna live the life on your own terms. Okay? What is the magic formula? This whole thing, right? We talk about economy, we talk about mindset, we discuss different ways of making wealth, like unwiring the scarcity mentality and develop things will start to look easier for you. Okay? And trade. मेरे को आगे यहाँ पे टाइम वो करने की कोई जरूरत ही नहीं, राइट? ऑल द वे मेरी पढ़ने की तरफ वहां पे आके यहाँ पे जो है ना, आई हैव जीरो इंटरेस्ट कि मतलब आज किसी से कोई टाई अप कर लूं, किसी को पैसे बना लूं या किसी को आई कैन सेल लॉट ऑफ दीज थिंग्स इन कोर्सेस. I have seen a lot of folks in Hyderabad making money just by teaching English. That's fair. That's good. I mean, if they are doing, there's a skill to do that. But what I'm saying is, do selfless, have selfless intentions in your life to help others. Then Allah will automatically open the doors for you. Fi sabilillah bolte hain. Fi sabilillah matlab jo hai na, niyat rakho aap har kisi ke liye. Then Allah will stop wasting precious time and spend the time in learning new crafts and skills. And again, I tell you, this is not science. This is not rocket science. All the people who are here, who have no idea about the stock market, if I go in and tell a 10th grader, and if he picks up this thing, he will make the money. Because this is like a craft. Like a carpenter के पास, किसी carpenter कोई भी नहीं है ना, carpenter बनना है तो जाके आपको सीखना पड़ता है, राइट? आप बोले कि डे 1 से जो है मैं जाके टेबल बनाता हूँ, मुझे बताओ सर बड़े लगते, हाथ पे एजेस खड़े होते हैं. So for that to learn perfectly, you have to go and work and practice how to move the blades, रंदा कैसे मारना है सही तरीके से. वो जब तक क्राफ्ट नहीं आता आप फिर मार लगा देते थे. तो ये क्राफ्ट है. You have to spend time and experiment and learn. Think about big goals, but maintain laser focus.
बिग गोल्स का ये मतलब नहीं है कि बड़े बड़े ख्वाब देख के मतलब ओवरवेल्म हो गए आप, अरे भाई ये होता ही नहीं, इट डजंट मैटर। स्टार्ट थिंकिंग बिग कि मेरे को जाना वहां पर है, then also start thinking small, laser focus, okay, I need to go there, but what are the next steps, step by step, to go and end up in a hedge fund. If you want to work, maybe if you want to earn like 10 crores, what is the next step? What are the skills I need to acquire? What are the kinds of businesses I should go into? Not every business will make you 10 crores. You have to go in a very specific businesses, or what kind of jobs can help you. So have a laser focus to learn one skill at a time. Don't overwhelm yourself. For ones who haven't started the job life, this is really, really, really. I mean, मेरे को अगर आगे दे दी ये पूरी जवान वापस, so I would just go and learn a lot of stuff. To be honest, जब बच्चे शादी हो जाती है ना, मतलब it just becomes very difficult to manage time. In life, take calculated risk. मतलब बचा के नरक तू, मतलब अल्लाह अकबल का अशार है, तो तेरा आईना है वो आईना, तो put yourself, I mean, go out of your comfort zones, take risks, go hard, मतलब जो है ना, businesses सीखो, businesses जो करते हैं उनके साथ उठो बैठो, mentor ढूंढो, that's how you will learn. Imagine yourself like down the road 20 years के बाद कोई छोटे बच्चे हैं, उनको अगर तुम कहानी सुनाने बैठोगे तो तुम्हारे पास क्या कहानी है? Do you even have any stories right now? Or if you don't, then that's a problem because you haven't experienced your life, right? You have to go and do a lot of mistakes, and that's how memories will be made. That's how you will learn new stuff. Okay, strive for consistency. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबको बोल रहा हूँ। ये अपने को जो है एक दो दिन का शौक नहीं होने का, एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। You just don't want to get people watch a lot of motivation speakers. Motivation, I hate that because they'll take you nowhere. Motivation speakers are like they're just speech sellers, salesmen. So थ्योरी के किस्से सुना रहे थे आप, प्रैक्टिकल से आपको जो है ना मतलब विजडम गेन होता। तो मोटिवेशन जो है ना मतलब सुनने से कुछ नहीं होगा, आप जाएंगे जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप, एंड ट्राई टू हैव कंसिस्टेंसी लिटिल बाय लिटिल, एंड नेटवर्क एंड फाइंड मेंटर्स टू, आप ऐसा होने वाला नहीं है। तो स्टार्ट सिटिंग विद डिफरेंट पीपल, ऑनलाइन ग्रुप्स, कोर्सेरा है स्पेसिफिकली जॉब जो करने वाले हैं, मतलब जो जॉब ओरिएंटेड है, कोर्सेरा में तो इतने सारे कोर्सेज हैं, राइट? You should be taking advantage of that. I mean, free of cost. Network and find mentors to learn skills. If you do not have the mentor, just try to create one. Maybe that will be a beginning, and that will become like a foundation for the new kids as well. फिर उसके बावजूद भी अगर कुछ भी नहीं है तो ये लास्ट साल जस्ट क्लोज इट, खुदा तुझे किसी तूफान से आसना कर दे कि तेरे बहर की मौज में इस तरह नहीं। What does this mean? Your waves in your sea do not have any restlessness. So give away the complacent life. That's the message. If you still do not see any restlessness in your lives, then you should go through some trouble. अल्लाह जो है ना कोई ऐसे दोस्त के जो है ना तुम्हारे तूफान से तुम्हारी दोस्ती कर दे। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती, फैमिली में प्रॉब्लम्स आती, सब चीजें चलते रहती। If you divert your attention, if you divert your strength with a passionate project, that whole thing will become a powerful growth. या तो सिर्फ एंगर का बताया, एनीथिंग, सबके पास अल्लाह ताला ने जो है ना सलाहियतें दी हैं, सबके पास एक यूनिक स्किल है। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ एंड फिगर आउट व्हाट यू आर मेड अप ऑफ। फुल पोटेंशियल तक अपनी जो है ना वजूद को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू अ टीचर प्रोफेशन और डॉक्टर प्रोफेशन। दिस इज नॉट अ ह्यूमन और मुस्लिम इज मेड फॉर। उससे मतलब जिंदगी का मकसद जो है ना इतना मतलब इतना छोटा नहीं है कि जो है ना उस पर गुजर जाए। तो all right, I think this is the end. Any questions? If not, then we'll call it off. One day walking for this,